spent my 2 years learning digital marketing on my own. Right, made my first website. You see, Strategy Works. That was the first domain which I bought in year 2005, and I bought those days only with a purpose and motive to learn, because I knew very well if I have to learn digital marketing on my own, I have to go and practice, and that's why I bought my first domain. And you know what I used to do? I used to read a line, practice it, read a line, practice it, and this is how I was doing for this continuously for 2 years without doing any job, sitting at home, and life was really bad. Right, but after that, maybe after 2 years, my first break which I got was with Infosys. It was not a direct; it was a through a to a company, through a consultant, right? Now that role which I got in, that came from LinkedIn only. Why and how? I will tell you the story how it all happened, right? First, let me take you back to my LinkedIn. You guys are able to see my screen? आप लोग मेरा स्क्रीन दिख रहा है? No, sir. ओहो, अभी आया? आ गया. Yes, sir. Yes. तो LinkedIn में जब मैं था, so I was connecting with a lot many people on LinkedIn. आपको पता LinkedIn का बेनिफिट क्या है? LinkedIn का what is the best feature in LinkedIn? Anyone? It connects you with people with same interest. Okay. उससे बड़ी बात, it is only one a platform into the entire universe, I could say, जहां पर you are going to showcase your skill set. If you're a digital marketing guy, here you can go and tell Mm-hmm. people आपने क्या काम किया है, क्या आपने सब कुछ अचीव किया अपने लाइफ में. You are going to go and display everything onto this platform. एक मिनट बेटा. जी, हेलो, यस प्लीज. या what do you want? I'm sorry ma'am, I'm in a class. Thank you. Bye bye. I'm sorry. All right. Got it? So it is only one of a platform which will allow you to connect with professionals, people who are into the corporate or non-corporate, wherein if you as an individual you want to showcase your skill sets, your experiences to the world, and you can connect with the people onto this platform. So from initial days I had, because I was into sales and my job was to go and find connections into the companies. That was my job. So I knew, and you know, I'll tell you one bad thing about me. मेरी जितनी एज है उससे ज्यादा कंपनी में मैंने नौकरी की है. Mm. सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज कभी मैंने बैठ के अपना एक एवरेज निकाला एक कि नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस व्हाट आई हैड एंड नंबर ऑफ कंपनीज व्हिच आई वेयर आई वर्कड इन. इट कुड बी 15 days, it could be 1 month, it could be 2 years, 3 years, 4 years, including everything. मेरा एवरेज आ रहा था हार्डली 1.5 months. मतलब 1.5 महीने मेरी एवरेज वर्किंग एक कंपनी में हुआ करती थी. एंड दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ द सेल्स. क्योंकि सेल्स में मेरे को कंपनी ज्वाइन करता था, एक महीने काम किया, मजा नहीं आया, छोड़ो यार, दूसरी पकड़ो. मजा नहीं आया, छोड़ो. बॉस का पंगा हो गया, रिजाइन मारा तुरंत. उस वक्त सोचता ही नहीं था. देन somebody in the from HR said, man come on, तुम तो यार हॉपिंग हॉप जंपिंग जैक बन गए. यू नो जंपिंग जैक कौन होता है? जो यहाँ से वहां फुदकते रहता है, एक कंपनी में Mm. टिकता नहीं है. और इन इन वर्किंग वर्किंग साइड ये जंपिंग जैक जो आई कुड से जो जंपिंग जैक जो जो वर्क स्टाइल है, ये लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं. कंपनी क्या बोलती है, यार ये बंदा तो टिकता नहीं है, इसको लेके क्या करेंगे, 2 महीने काम करे फिर भाग They जाएगा. feel they cannot trust you. ट्रस्ट की बात नहीं बेटा. अभी मतलब अभी मेरे को आपको काम देना इंपॉर्टेंट काम, और मैं देख रहा हूँ आपका आपका मैंने हिस्ट्री वर्क हिस्ट्री देखा, आप किसी भी कंपनी में 2 महीने ज्यादा टिक ही नहीं रहे हो. तो Mm-hmm. मेरे अभी आप पता चला 2 महीने बाद भाग जाओगे, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं आप पे? तो मैं आपको हायर नहीं Mm-hmm. करता हूं. अंडरस्टूड? बट ये जो सिचुएशन Yes. थी, ये कब की बात है? आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले की. लेकिन आज के Mm. डेट में
ये कंप्लीटली बदल गया है। पहले होता था कि लोग एक कंपनी को ज्वाइन करते थे, अपनी पूरी जिंदगी उसमें काट देते थे, लोग लॉयल हुआ करते थे। नहीं बोलते ना लोग लॉयल्टी, मैंने इस काम हम्म HLL में 15 साल काटे, 20 साल काटे, मैंने HL ज्वाइन किया एग्जीक्यूटिव से और रिटायर किया MD बन के, मेरे पूरे लाइफ उसमें कटी। हम्म तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स व्हाई पीपल स्टिक टू अ कंपनी, बट इतना मैं कहूंगा कि उस समय में जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको आज मिल रही है, जितना एक्सपोजर आपको आज मिल रहा है, उतना पहले नहीं था। लोगों के पास इतने ऑप्शन नहीं थे। आज आपकी एज में आई टेल यू द ब्यूटीज, आपने मेरे साथ काम करना पसंद किया, आपको मेरा काम पसंद आया, मेरे साथ काम करना अच्छा लग रहा है, वी बोथ आर रियली एंजॉयिंग, यू आर बीइंग पेड, आई एम गेटिंग माय जॉब डन, वी आर वेरी गुड। द मोमेंट यू फील माय नाउ मैन दिस जॉब इज गेटिंग मोर बोरिंग, you will say next day, I'm sorry, I'm not going to continue. And I know it, you will say it. The reason means now the things are getting into another space. अभी हो गया है कि people do not look at a career, people are looking at a job. जॉब और करियर में डिफरेंस क्या होता है? इन करियर यू बिल्ड अ करियर। कैसे बिल्डअप होता है? लाइक यू हैव सीन द स्प्रिंटर्स, या जो यू नो व्हाट इज स्प्रिंटर, एथलीट्स, yes sir. में से कोई है? नो, सो बैड मैन। No. मैं अपने जमाने में स्प्रिंटर हुआ करता था। स्प्रिंटर आर दोज गाइस हु रन द फास्ट रनर्स लाइक 100 मीटर, 200 मीटर एंड I am sir. हु I am Saira. really very nice, very nice. Uh-huh. Then you know the kind of practice I which was is in, required, right? yeah. I'm into these two things only. One is art and one is sports. Fantastic, man. Good. Mm. Lovely, lovely, lovely. So sprinter, so being a sprinter, you know, you have to really push it very badly yourself. इतना कि आपको मेहनत करनी पड़ती है. That is how you are able to cope up with the fast. So in the similar way, आज के जो समय है, और लाइक इफ यू बिकम ए स्प्रिंटर, आपको कॉन्टिन्यूसली रोज मेहनत करनी है। ऐसा नहीं एक दिन आपने मेहनत किया, फिर 2 दिन आराम किए, फिर पता लगा आपके आप दौड़ ही नहीं पाओगे। सो इन दैट सिचुएशन करियर इज आल्सो लाइक दैट। करियर आप बिल्डअप करते हो। आज आप फ्रेशर हो, इंडस्ट्री में घुसते हो, काम सीखते हो, पहला आपका जो कोर काम है उसको सीखते हो। धीरे धीरे आप लोगों के साथ मतलब साथ बैठ के काम करना सीखते हो, हाउ टू वर्क इन अ टीम। देन धीरे धीरे आप में कैपेबिलिटी डेवलप होती है, भाई टीम तो मैं बन गया, मैं टीम का लीडर बनता हूँ। देन यू स्टार्ट गेटिंग दैट कैपेबिलिटी ऑफ, और आई कुड से यू स्टार्ट गेटिंग दैट स्किल सेट ऑफ बिकमिंग अ टीम लीडर। जब आप अपनी छोटी टीम को मैनेज करने का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको लगता है आप में टीम को मैनेज कर लें, अब बड़ी टीम को तो देखा जाए। देन यू स्टार्ट बिकमिंग फॉर अ मैनेजर। तो मैनेजर का काम ये होता है कि अपना काम तो करेंगे करेंगे और बाकी लोगों से भी काम कराएंगे, ताकि मेरी कंपनी का जो विजन है उसको आगे बढ़ाना है। राइट, एंड दिस इज हाउ यू बिल्ड अप योर करियर। आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे ज्वाइन किया था, यू बिकम द सीनियर एग्जीक्यूटिव, देन यू बिकम मैनेजर, सीनियर मैनेजर, देन डिपार्टमेंट हेड, मार्केटिंग हेड, देन यू मे CMO, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, देन यू कैन गो ऑन फर्दर बिकम द CEO ऑफ द कंपनी। और ये इसको हम कहते हैं करियर प्रोग्रेस। बट आज की डेट में आप देखो, एवरेज व्हाट आई एबल टू सी राइट नाउ, आज से 10 साल पहले एवरेज लोगों का एक कंपनी जो काम करते थे, कमिंग अराउंड 5 to 6 years ऑन एन एवरेज। मतलब आदमी एक अपनी लाइफ में कम से कम 2 या 3 या मैक्सिमम 4 कंपनीज में काम करता था ऑन एन एवरेज, उससे ज्यादा कंपनी चेंज नहीं करता था। लेकिन आज लोग 4 कंपनी साल भर में चेंज कर लेते हैं। You see if you see the younger generation profile, you see 6 months, 7 months, 8 months, 11 months, ऐसा करके उनका ड्यूरेशन चलता है कंपनीज में। It means now people have become very, very job oriented. They are looking for the job oriented. Job मतलब क्या होता है? You are given a piece of a task, आपने फिनिश किया, पैसा लिया, आगे बढ़ो। Which could be also called as a freelancing mode. It means you're trying to get into an entrepreneurship mode wherein you're only going to focus on a certain set of jobs. आप उनको काम करते हो, आपको पैसा मिलता है, and you keep moving on pursuing your other interests in other time, whatever you have got availability. But in career, you focus on to doing a particular piece of job every day. You refine yourself every passing day. आप अपने को रिफाइन करते हो, ग्रो करते हो। Yeah, and every time your path is only one. Absolutely, yes. But in a job, in a freelancing, you keep on hopping. तो अभी जो मार्केट का सिचुएशन हो गया, it has become a hopping mode.
लोग ज्यादा दिन तक टिकते नहीं है। तो उसका साइड इफेक्ट क्या है और गुड इफेक्ट क्या है? गुड इफेक्ट ये है कि you're being exposed to various different variety of jobs. जैसे आप मेरे से पूछोगे, जैन आई हैव गॉट अ प्रोजेक्ट इन फाइनेंशियल इंडस्ट्री, कैन यू डू समथिंग? तो मुझे मालूम है, मैंने इतनी कंपनी में काम किया हुआ है कि मेरे से कोई भी इंडस्ट्री छूटी नहीं है। आई हैव वर्कड इन ऑलमोस्ट एनी पॉसिबल इंडस्ट्री। तो फॉर एवरी इंडस्ट्री आई हैव गॉट सम एक्सपोजर, सम नॉलेज। बट हो सकता है इफ यू आस्क मी वेरी डीप नॉलेज इनटू दैट वन, आई वोंट बी एबल टू गिव एन आइडिया, बट आई हैव अ नॉलेज कि ये काम कैसे करता है, कैसे टारगेट करते हैं, कैसे कर सकते हैं, because of my hopping nature of business which I was into. Or if I look at the positive thing which was brought into me, so being a hopper, I haven't done it chosen from myself. मैंने अपनी इच्छा से चूज नहीं किया था, it happened. तो उससे मुझे एक फायदा ये हुआ कि मेरे को इतना एक्सपोजर मिल गया कंपनीज का, इंडस्ट्रीज का, लोगों से मिलने का, जुलने का, लोग कैसे चीजों को रिएक्ट करते हैं, कैसे देखते हैं, उन सबको देखने इतना एक्सपीरियंस हो गया कि अब तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। You bring in any project, any business, I would be able to think through very carefully कि ये कैसे market करना है. Because I have seen the people, I've seen people how they take a decision, I've seen people how they make a decision process. I have seen people how they look at the data when you present them a PPT or you take them through a demonstration. What makes them excited? So मैंने ये सारी चीजों को एक्सप्लोर किया है, एक्सपोज किया अपने आप को, और मुझे उसका नॉलेज है। तो आज मैं जब मैं मार्केटिंग रोल पे बैठा हूं, एनी प्रोजेक्ट कम्स टू मी, आई डू नॉट, मेरे हाथ कांपते नहीं है। आई नो आई कैन डू इट, क्योंकि मेरे पास एक प्रीवियस एक्सपीरियंस का नॉलेज है। ठीक है, सो आई लुक एट इन दिस वे, फ्रॉम हॉपिंग आई गॉट एक्सपोजर, बट व्हाट इज द साइड इफेक्ट? अब कंपनी जो है बोलती है ये तो हॉपर है, इसको आप नहीं लेंगे, right? But that is their choice. I don't have any issue with that because I have got my own path which I'm loving right now and I want to continue this. So मेरा हॉपिंग, मेरे अपने वे, मेरा जो लाइफ का गोल था कि मुझे अपना कुछ करना है, so maybe it is really fitting pretty well with my experiences which I've got. But ऐसा जरूरी नहीं कि आप भी मेरे पाथ को फॉलो करो, बट आई रिकमेंड आप पहले अपने आप को डेवलप करो, ग्रो करो, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज एक बार आपका बेस स्ट्रांग हो गया, उसके ऊपर जो भी बिल्डअप करोगे वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा, राइट? सो व्हेन आई से यू हैव टू बिल्ड योर बेस, तो अभी आप नॉलेज गेन कीजिए, लोगों से मिलने का एक्सपोजर बढ़ाइए, लोगों को जानना सीखिए, लोगों को समझना सीखिए, और द मोर टाइम यू स्पेंड अराउंड पीपल, यू विल बिकम अ परफेक्ट पर्सन। और धंधा इंसानों के साथ करते हो, so it means when you're doing your own business, any business of that kind, you are going to deal with people. और जब आपको लोगों को जानने का एक्सपीरियंस रहेगा, तब आप अपना बिजनेस आप काफी अच्छा कर सकते हो। ठीक है, बाकी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी सीखना, नहीं सीखना, या कुछ और भी सीखना, सीखना तो जिंदगी भर चलता रहेगा, इट इज नेवर गोइंग टू स्टॉप, राइट? बट जब बेस लेवल पे हो तो बेस को बिल्डअप करो, लोगों को जानना सीखो, लोगों को कैसे कंट्रोल करो, लोगों के इमोशन के साथ में कैसे आप डील करके उनसे काम करा सकते हो। बिकॉज एक मैनेजर बनना, दुनिया में सबसे टफ काम क्या मालूम है? एनी आइडिया? To be a manager. सबसे बड़ा टफ काम दूसरे की जेब से पैसे निकलवाना। उनसे काम भी करवाना। निकलवाना, एग्जैक्टली, बिना उनको so that हर्ट manager has to do. Absolutely, absolutely, that's what, absolutely, correct. तो सबसे टफ काम ये होता है। टेक्नोलॉजी सीखना टफ नहीं है, आप 2 दिन बैठोगे, 3 हफ्ता बैठोगे एक जगह, आप धीरे धीरे सीख जाओगे करते करते करते। All right, understood? So what I was trying to say is this platform has given me my best opportunities in my life. मैंने नौकरी में ट्राई किया, मॉन्स्टर में ट्राई किया, जॉब स्ट्रीट में ट्राई किया, यू नेम अ जॉब पोर्टल, मैंने, मेरा प्रोफाइल कहाँ नहीं था, राइट? अगर आप मुझसे पूछो ना विच आर द टॉप बेस्ट पोर्टल्स और कौन सा पोर्टल अच्छा है, कौन सा पोर्टल खराब, मैं आपको भी बता दूंगा, कि मैंने कोई भी ऐसा पोर्टल छोड़ा नहीं अपनी जिंदगी में जिसपे मेरा प्रोफाइल नहीं था, राइट? एक आपने सुना shine.com, सुना है? शाइन, नो, shine.com नाम सुना? shine.com ये हिंदुस्तान टाइम्स का जो है, ये उनका पोर्टल है। एंड ये इतना फालतू सा, इसमें इतनी गंदी फालतू जॉबें आती हैं कि मतलब बेटर्स को देखो नहीं।
very pathetic. Then you got job streets. Job streets are say, one of 8-10 years ago, job streets was amazing. काफी अच्छी jobs आती थी, and they were really, I mean, those jobs were basically they were the live jobs. मतलब उनको अप्लाई करो तो आपको कॉल आएगा. अभी आप नौकरी देखो, नौकरी आज की डेट में ना जॉब पोर्टल कम हो गया, एडवर्टाइजिंग पोर्टल ज्यादा बन गया. व्हाट डज इट मीन कि आज ना आप नौकरी में आप जाओगे, कुछ जॉब्स अब दिखेगी, लोग पता चला 1 साल पहले जॉब पोस्ट की थी, अभी भी दिख रहा है. और कुछ जॉब्स ऐसी हैं, कितना भी अप्लाई करो, हर महीने अप्लाई करो, उनका कभी तो लगता कोई बंदा हायर ही नहीं करते हो, राइट. उनके हमेशा पोजीशन खाली पड़ेगी. सो टेक्निकली इट हैज बिकम अ प्लेस फॉर पीपल टू डू द मार्केटिंग ऑफ देयर वेबसाइट्स और मार्केटिंग ऑफ देयर बिजनेस. कि 1500 रुपए में आपको 1 महीने का आपका पूरा आपका लिस्टिंग पड़ी रहती है. और you all know that Naukri.com is India's most popular job portal. तो आपकी अगर वेबसाइट को, आपकी जॉब पोस्ट को हर महीने लाखों लोग देख रहे हैं, तो आपको 1000 रुपए में और कौन देता है ब्रांडिंग यार? 1000 रुपए में और कोई प्लेटफॉर्म दे सकता है आपको ब्रांडिंग? इतना एक्सपोजर कोई नहीं दे सकता, right? So it becomes the cheapest platform. So that is why you see some of the jobs on a Naukri, they are lying from ages. हर महीने अप्लाई करो, हर महीने सोई रहेगा, कोई रिप्लाई नहीं आएगा ना कुछ आएगा, बट पोजीशन हमेशा खाली रहेगी, right? So I've seen everything in my life. Monster.com आज से कई साल पहले काफी अच्छा पोर्टल था, बट आज के दिन में कभी कचरा हो गया. But then you will ask me then which is the best portal and how this hiring is happening. So आज के डेट में हायरिंग का जो ट्रेंड था काफी बदल गया है. Now hiring is happening at a different levels. पहला लेवल होता है आप लोग जिस लेवल पे हो, एंट्री टू एंट्री लेवल. एंट्री लेवल मतलब क्या होता है? I'll tell you the job. अच्छा, why I know about all these things? क्योंकि मैंने once upon a time एक HR कंपनी में काम किया था, right? So what happens now? अभी 3 स्टेजेस हो गए जॉब्स की. एक होता है एंट्री लेवल, दूसरा होता है मिड लेवल, और दूसरा होता है सीनियर लेवल. ओके, एंट्री लेवल क्या होता है? सो पीपल विद 0 to 3 years experience, they all are considered as a freshers or entry level jobs. तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अगर आपको 0 एक्सपीरियंस है और पड़ोसी को 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म मिलेगा काम करने को. भले सैलरी में थोड़ा सा 5-10 का फर्क हो, बट मोर और लेस यू बोथ आर एट द सेम स्टेज. सो इंडस्ट्री कंसिडर करती है 0 to 3 years इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज एंट्री लेवल. अब इस लेवल पे जो जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हैं, या कहा जाए हायरिंग कैसे होती है, तो दीज आर मेनली द बल्क हायरिंग, कीपिंग द आईटी इंडस्ट्री इनटू द कंसिडरेशन. यहाँ पर एक बार में 10 बच्चे, 15 बच्चे, 25 बच्चे एक साथ में भरे जाते हैं, राइट? और ये वो सारी जॉब्स होती हैं जहां पर आपका सैलरी रेंज, I'm just giving you indicative salary range. It does not mean that it's actually. So indicative salary range could be somewhere from, let's say 8,000 से लेके let's say 15,000 तक का जॉब. मंथली सैलरी जो है 8,000 rupees to 15,000 rupees of salaries are being offered to the people at a 0 to 3 years of experience. और ये सब जॉब्स के लिए सबसे बढ़िया पोर्टल कौन सा मालूम है आपको? Anyone? नहीं, एक मैं बताता हूं, बहुत मजा. आप उसमें जाइए, एक तो है टाइम्स जॉब्स, सुना होगा आपने नाम, और दूसरा है इंडीड. नाम सुना है? यस सर. वेरी गुड. टाइम्स जॉब पे जाओ, इंडीड जॉब पे जाओ, आप नौकरी पे भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ व्हाई आई एम रिकमेंडिंग नौकरी? पहला चीज है, जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, they go and take the resume access from Naukri, right? उनको naukri.com में they are registered and they've got the access to Naukri database, जहां पर अपने मन पसंद का जॉब हो जाके प्रोफाइल या तो डाल सकते हैं या रेलेवेंट प्रोफाइल वो सर्च कर सकते हैं.
right? Which is also comes at a decent price, which companies can afford it, right? So people who are into recruitment kind of companies, working with recruitment companies or recruitment companies, hiring companies, they all have more or less a naukri.com का profile. क्यों? Because नौकरी के पास में resume का सबसे बड़ा database है दुनिया का. Indeed.com and Times is a very popular for the entry level jobs. आप 5 साल 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद में अगर आप टाइम्स में जाओगे तो आपको फालतू जॉब मिलेगी और उसका जॉब का जो सैलरी पैकेज वो भी अच्छा नहीं रहेगा एंड यू विल स्ट्रगलिंग, वो वहां पे काम नहीं करता प्रॉपर्ली. ठीक है, तो मॉडल्स आई रेकमेंड बी ऑन टाइम्स, जो भी ऑन इंडी.com, नौकरी.com पे रहिए एंड स्टार्ट फ्लोटिंग योर रिज्यूमे. ओके, नाउ व्हेन इट कम्स ऑन मिड लेवल, इस सेगमेंट में अब अपने पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सो हियर पीपल गो विथ नौकरी. इस सेगमेंट में नौकरी काफी पॉपुलर है, नौकरी.com. देन यू गॉट इंडीड को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आपका मॉन्स्टर कर सकते हो, राइट? एंड देन यू कैन लुक एट लिंक्डइन. व्हेन यू गो टू सीनियर लेवल, वहां पे नौकरी मॉन्स्टर दे लूज देयर हैंड. वहां पर आता है आईएम जॉब्स. यहाँ पर जस्ट बेसिकली दिस पोर्टल वाज क्रिएटेड मेनली फॉर द पीपल हु हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईएम्स, बट बाद में इन लोगों ने ओपन कर दिया बाकी अदर इंस्टीट्यूशंस. पीपल गॉट ग्रेजुएटेड फ्रॉम प्रेस्टिजियस कॉलेजेस. तो सीनियर लेवल पे जो भी हायरिंग होती है, पीपल लुक हायरिंग पीपल फ्रॉम द प्रेस्टिजियस कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशंस. तो वहां पर आईएम जॉब्स पे चलता है. एंड लिंक्डइन में इट इज समथिंग कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव सर्च, जिसको हम कहते हैं. मतलब कि वहां पर जो सीनियर मैनेजमेंट या सीनियर प्रोफाइल्स के लिए अगर कोई जॉब कोई बंदे को खोज रहे कंपनी, तो वो इंडिविजुअल लोगों को असाइन करते हैं. सो दोज गाइस जॉब इज टू गो एंड कनेक्ट विद द सीईओज, एमडीज, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको ऑफर देते हैं कि भाई फलाना कंपनी में जॉब है, इतना पैकेज है, ये है, आप ज्वाइन करोगे क्या? और दे दैट एग्जीक्यूटिव सर्च कंपनी वर्क एज एन मीडिएटर. जिस बंदे को हायर करना चाहते हैं, जो कंपनी हायर करना चाहती है, उन दोनों बीच में एज ए मीडिएटर काम करते हैं और उन दोनों को आपस में बातचीत कराते हैं. इफ दे फाइंड इट सुटेबल, हैप्पी, गुड, देन दे एक्सचेंज द ऑफर्स. सो वो होता है सीनियर लेवल पे. ठीक है भाई. अब आप बोलोगे यार वी आर राइट नाउ इंटर लेवल, तो हमारे लिंक्डइन का क्या रोल है? करेक्ट, हमारे लिंक्डइन का क्या रोल है? एनीवन? आपको क्या लगता है अभी आप क्या कर सकते हो लिंक्डइन में? आपको तो 03 एक्सपीरियंस है और आपको पता है आपके लायक जॉब यहाँ पे बहुत कम आएगी, फिर आप क्या करोगे? We can at least show our interest in what we do, our work or something. करेक्ट. तो आप जो एक ही काम आपके जो हाथ में बचता हुआ है, नेटवर्किंग करो, बाकी लोगों से कनेक्ट करो. ठीक, उसमें देखो इसका फायदा यह है कि टाइम्स जॉब्स, इंडीड, नौकरी, ये सब क्या है? रिज्यूमे बेस्ड जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म. इसका मतलब है लोगों को आप तक पहुंचने के लिए आपके रिज्यूमे से होके जाना पड़ेगा. आपका रिज्यूमे उनके सामने नहीं पहुंचा, वो आप तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, है कि नहीं? लेकिन लिंक्डइन में आप उन तक डायरेक्टली पहुंच सकते हो. चलो एक काम करते हैं, अब मैं आपको नौकरी.com ले चलता हूं. ठीक है, आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. जैसे बहुत मजेदार चीज है नौकरी. शॉर्टकट में कैसे लेना, मैं हमेशा कहता हूं भैया, मैंने हमेशा सबको बोला है कि अगर आपके अंदर जज्बा है, आपको काम आता है, देन आप अपने मनपसंद की कंपनी, अपने मनपसंद का जॉब आप खुद ले सकते हो. और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यू कैन पिन पॉइंट. अगर आप कहती हो कि मेरे को इस फलाना कंपनी में काम करना है, आप उस कंपनी में काम कर सकते हो. रास्ता मैं बताऊंगा. ठीक है भाई. सो लेट्स से आई गो हियर एंड सर्च फॉर लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न. सर्च. ठीक है, एक मिला मोहीपुरी टेक्नोलॉजी. कहाँ का भैया ये? नोएडा. नोएडा में तो जाने नहीं. कोई है क्या नोएडा से?
Anyone of you here from Noida? No, No, sir. sir. अच्छा हुआ. जानते हो क्यों? जितनी फर्जी कंपनी सब नोएडा में है. I mean, I'm saying perfectly, but mostly be aware, research about the company before you go and apply. मेरे एक स्टूडेंट के साथ ऐसे हो तो उसको एक कंपनी ने ऑफर किया, एक हफ्ता काम कराया, फिर बोले मजा नहीं आ रहा है, बोले यू हैव टू इम्प्रूव. उस बच्चे ने और काम किया, मेहनत की, 1 महीने तो उसने खूब स्लॉग किया. बाद में जब पैसे देने की बारी आई तो उन लोग बोलते हैं आई एम सॉरी वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर फायरिंग यू. राइट. जब बाद में उस लड़की ने पता लगाया तो पता चला सर वो एक कमरे की कंपनी थी, एक बंदा है उसमें बस. इट इज ऑनलाइन जॉब शी वाज डूइंग इन डिजिटल मार्केटिंग. Then from then I recommended my students do not apply companies in Noida. नोएडा जो कि यूपी में फॉल करता है, और सारे मिसक्रिएंट्स गंदे लोग ना वो सब उधर भड़े पे हुए हैं. आई एम सॉरी टू से बट this is my experience which says. So assuming let's say I could go and look at this company called Wisdom Labs. ये है बॉम्बे मुंबई, सॉरी पुणे मुंबई, 0 to 1 year एक्सपीरियंस. अब इसको क्लिक करते हैं. ओके, ऑल डन, गुड 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 गुड. अब आप देख रही हो इस जॉब को किसने पोस्ट किया है? रश्मि गुप्ते ने, कंपनी रिक्रूटर विजडम लैब. ये विजडम लैब में काम करती हैं और उन्होंने इस जॉब को पोस्ट किया हुआ. कॉन्टेक्ट डिटेल देखे जाए, ये कहां पर है? ये इनका एड्रेस आ गया, थाने की है. ठीक है. रिक्रूटर्स लास्ट एक्टिव 9 days अगो, ये 9 दिन पहले इस प्लेटफॉर्म पे आई थी. तो अगर ये जो जॉब अभी पोस्ट की, अभी आप क्या करो, 90% टाइम क्या करो, यहाँ पर लॉग इन करोगे, यहाँ लॉग इन करके अप्लाई मार दो, धनाधन धनाधन धनाधन. जॉब अप्लीकेंट्स टिल नाउ 229 लोगों ने इस जॉब को ऑलरेडी अप्लाई किया, वो 8 दिन पहले. एक पोजीशन है. तो बताओ भैया, अगर आप भी अप्लाई किए आपको देख पाएंगे आपके रिज्यूमे? कितना पॉसिबिलिटी है? डू यू सी दिस? एक ओपनिंग है, 229 एप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुके हैं, और 6 दिन 8 दिन हो गया है, और अभी आप इस जॉब को अप्लाई करते हो, तो क्या चांसेस है आपके कि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाएगा? 0.5. 0.5. चलो 0.5 आप उम्मीद करते हो कि आएगा. चलो भाई. तो मैं तो कहता हूँ ये तो भगवान के ऊपर है. आपका लक बढ़िया रहा तो भैया, ओ अल्लाह मेहरबान तो गधा को ना पहलवान करे, कहावत है ना, सेम. तो अगर आप, आपका खुदा, आपका भगवान आपसे हैप्पी है, उसकी दुआ रही, तो हो सकता है आपका रिज्यूमे उनको पहुंच जाए. बट वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि आपको दिखेगा या आपका रिज्यूमे उन तक पहुंचेगा. तो इस सिचुएशन आप क्या करोगे? इस सिचुएशन आप क्या करोगे? अब ऐसा तो नहीं ना, अब तो ये एक जॉब का है, हो सकता है ऐसे और भी जॉब है, और भी एप्लीकेंट्स होंगे. तो आप हर जॉब देखोगे, हर एप्लीकेंट देखो, तो भैया देन इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू गो एंड गेट योर रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड ओनली. तब इस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए हम आते हैं लिंक्डइन पे. ठीक. तो हमारी मैडम कौन सी थी ये, क्या नाम था इनका? रश्मि. रश्मि गुप्ते. गुप्ते जी. चलो इनका प्रोफाइल खो जाए. विजडम लैब्स मैडम कहाँ, आपको प्रोफाइल दिख नहीं रहा है? करंट डेजिग्नेशन, व्यू कंपनी डिटेल्स, कंपनी रिक्रूटर, विजडम लैब्स. ठीक है, ठीक है. अब ये काम करते हैं, हम इनको खोजते हैं, मिलती हैं क्या? कहाँ खोजेंगे? आई गो एंड टेक रश्मि गुप्ते. अच्छा बाजी, यहाँ पे लिंक्डइन का प्रोफाइल होना चाहिए. लेट्स सी इफ यू कनेक्ट विद हर डायरेक्टली. आई थिंक वी आर एबल टू गेट टू सी हर. नो. शेयर इन पोस्ट है तो जो शेयरिंग का हुआ, सो इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट अ प्रोफाइल. करेक्ट. ये शेयरिंग विजिट है, इट इज नॉट हर प्रोफाइल डेटा. So anyways, so let me see this Rashmi Gupta ji. कौन सी कंपनी थी? विजडम, विजडम लैब्स. विजडम, विजडम राइट, करेक्ट तो है.
तो हमको दिख तो नहीं रहा है, कोई बात नहीं। रश्मि गुप्ते, With TM Lab. हाँ भैया क्या बोलिए आप, समझा नहीं With मैं। DM Lab. वहाँ पे वो विजडम नहीं, with TM लिखा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हम एक और काम करते हैं, पूरा टेक्स्ट लिए, डाले, इंटर मारे, नौकरी लिंक्डइन मिल गई अपने को यहाँ पे, रश्मि गुप्ते। ठीक है भैया। अब देखिए रश्मि जी जो है मेरी सेकेंड लेवल कनेक्शन पे है। इसका मतलब है कि मेरे और रश्मि के बीच में कोई तो एक कनेक्शन जो कॉमन है। तो यहाँ पे दिख रहा है टू म्यूचुअल कनेक्शंस। अब दोनों कौन कौन है? एक तो है स्नेहा मोरे, सीनियर रिक्रूटमेंट मैनेजर एट नेक्स्ट प्रो, श्रुति कक्कर, सीएक्सओ हायरिंग कंसल्टेंट सीएक्सओ। क्या बात है, गुड। हम्म, ठीक है, तो अपनी तो जान पहचान निकल गई भाई। यस सर। तो अब मैं क्या करूंगा, अच्छा आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ अपनी लाइफ में, बहुत मजेदार स्टोरी है। और आई हैड गॉट अ वेरी वेरी अमेजिंग ब्रेक थ्रू इन माई लाइफ। हुआ क्या था, जब मैं 2000 में नौकरी ज्वाइन किया था बैंगलोर में, तो मैं एक कंपनी के साथ काम करता था विच वाज इनटू सेलिंग सॉफ्टवेयर्स। रैशनल सॉफ्टवेयर था। आपने सुना है रैशनल का नाम? मेरे ख्याल से नहीं सुना होगा। रैशनल सॉफ्टवेयर एक कंपनी हुआ करती थी जो कि आज के डेट में आईबीएम ने खरीद ली है। राइट, मैं इस कंपनी का सॉफ्टवेयर जो है बैंगलोर में बेचता था। और मेरा जो बॉस था, वो सीईओ, वो भी सेल्स कॉल पे जाते थे। तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते थे, बड़े लोगों से मिलते थे, मैं छोटी कंपनी था, छोटी कंपनी से मिलता था। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, मेरे बॉस जो है वो एक माइक्रोसॉफ्ट में गए। माइक्रोसॉफ्ट बैंगलोर में इनका ऑफिस है सेल्स का, वहां पे गए बात करने। और बात करने गए और वहां पे वो दो बिजनेस कार्ड लेके आए थे। एक बिजनेस कार्ड में था विच वॉज अबाउट अ मैनेजर, और दूसरा बिजनेस कार्ड जो था वो किसी डायरेक्टर मार्केटिंग का था। ठीक है, सो इट मीन्स ही हैज मेड टू पीपल इन माइक्रोसॉफ्ट इन सेल्स डिपार्टमेंट। बॉस एज यूजुअल सब बिजनेस कार्ड लेके आते थे, रखते थे, और बॉस बोलते थे यार इनकी डेटा एंट्री करो। डेटा एंट्री मतलब क्या मालूम है? नेम, ईमेल एड्रेस, जो कुछ था बिजनेस कार्ड से उठा के एक्सेल शीट में बनाने का। मैंने दोनों कार्ड सामने साइड में रखा, दिमाग में बात आई। मैं सोचा यार इस बंदे को मैं अगर मेल करूं गिविंग दिस अदर गाय रेफरेंस, और अदर बंदे को रेफरेंस मेल डालूं इस गाय का रेफरेंस, तो क्या कैसा आइडिया रहेगा? क्योंकि मेरे को मालूम था रेफरेंस से काम चलता है। अगर मैं बोलूं, अगर मैं डायरेक्टर को मेल लिख रहा हूं, मार्केटिंग डायरेक्टर को, सेइंग दैट आई हैव गॉट रेफरेंस फ्रॉम नितिन सक्सेना about a job in your company and I'm looking for an opportunity in sales, and here I'm attaching my resume to you for your reference. सेम कॉपी मैंने लिखी थी, दूसरे बंदे को लिखी, नाम बदल दिया। अब बिलीव नहीं करोगे, मैंने ईमेल शाम को किया था अराउंड 7-8 बजे के आसपास में। नेक्स्ट डे 10 बजे मेरे ईमेल इनबॉक्स में मेल आता है, जैन कैन वी कम एंड मीट। आई एम बिलीव माय डियर फ्रेंड, दैट वाज ए ब्रेक थ्रू। जब मैं वहां पहुंचा तो उस बंदे ने पूछा तुमको रेफरेंस कहां से मिला? तब जानते हो मैंने क्या बोला? सर मैं आप दोनों को किसी को नहीं जानता हूं, न कभी मिला हूं। मेरे बॉस जो थे शायद आपसे मिलने आए थे, ये दोनों कार्ड मैंने ऑफिस में देखे और मेरे मन में आया कि मेरे को अप्लाई करना चाहिए। एंड आई सेड देम, दे लाइक्ड माय अप्रोच। दे सेड यार तुमने तो अप्रोच अच्छा था, ठीक तुमने गलत है दैट्स ओके, बट आई रियली लाइक्ड योर अप्रोच, द वे यू हैव ट्राइड फॉर यूजिंग, अपने डेटा को यूज करके आपने कोशिश की एक। एंड बिलीव मी, ऑन दैट बेसिस दे ऑफर्ड मी अ जॉब। And I was working for Microsoft selling their Microsoft Office, Microsoft MSDN, जो कि डेवलपमेंट टूल होता है। For I did that job for roughly 1.5 years with the same company. Got it? So ये मेरे लाइफ का एक ब्रेक थ्रू है, which has came, I mean I don't know how. Simply sitting doing nothing वाला हाल है, बैठे बैठे कुछ नहीं किया जाए, खुरापाती करते हैं, और खुरापाती करते करते कुछ भी निकल के आया। So the point was, I was able to make use of a data to get my own job. Microsoft, believe me, अपने लाइफ में कभी ड्रीम नहीं कर सकता हूँ।
because I'm not from IIMs, I'm not from IITs, I'm not from any prestigious college. I was from a small college in Indore, yaar. Right? But the point which I'm trying to tell you here is, it means everything is possible. It is in your hand, the way you're able to utilize and market yourself. मेरी एक छोटी सी चीज ने मेरे को इतना बड़ा ब्रेक थ्रू दिया, और बिलीव मी, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का नाम मेरे प्रोफाइल पर रहता था, आई डोंट हैव टू वरी, कंपनीज आर एबल टू लुक एट मी, बिकॉज उनको लगा माइक्रोसॉफ्ट में होगा, कुछ भी करता होगा, काम तो करता होगा ना, वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज अ रिप्यूटेड कंपनी. You getting my point? What I'm trying to convey? So the point Yes, here is, you have to sir. be very, very creative in terms of looking at it, how you are going to make use of data, connect with people, create stories, and be approachable. सिर्फ बैठ के अप्लाई बटन क्लिक करोगे, बिलीव मी, मैंने इतना अप्लाई नौकरी में किया हुआ ना, नौकरी से कभी मेरे को कॉल नहीं आई. I have been one of the, I could say the very, very unluckiest guy on the earth जिसको नौकरी से कभी कॉल नहीं आई. और मैं, एक समय ऐसा था लाइफ में, मैं रोज सुबह 5 बजे उठता था, नौकरी का रिज्यूम अपडेट करता था, कम से कम 50 एप्लीकेशन में अप्लाई 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 मारता था, सेम चीज मैं रात को करता था, और ये काम मैं लगातार 1 महीने किया, बिलीव मी, 0 रिजल्ट. देन आई सेड, मैन नो, ऐसे काम तो नहीं होगा. देन आई वेंट बैक टू लिंक्डइन, और मैं इंडिविजुअली लोगों से कनेक्ट करना चालू किया. जैसे ये रश्मि गुप्ता आई, राइट, कैसे लग रही देख लो पहले, ठीक है, ओके. देन व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई टेल यू माय ट्रेड सीक्रेट. जब भी मुझे प्रोफाइल मुझे ठीक ठाक लगता था, कोई कनेक्शन मिलता था, मैं यहाँ पे कनेक्ट में आता था, और यहाँ पे देख रहे हो, एड अ नोट, यहाँ पे बड़ी शालीनता से, डियर रश्मि, आई एम जयंत फ्रॉम बैंगलोर, digital marketing professional. I got your reference from one of our common friend here, Miss. क्या नाम था वो? What was the common connection we had? Shruti. ठीक है? I would like to, I sorry, not I would like, I need your help in, need your help in, uh, um, help in, I need your help. That's it. I looking for job in digital marketing. Please help me. Now you tell me, when So I you go said, and, beta, you said you did digital marketing professional and now you're asking us for help. so what? अरे ये तो magic है. This is the magic. The magic is you're asking, please help me. ये इस वर्ड में इतनी ताकत है कि भगवान तो नीचे नहीं आएगा, बट आदमी आपके काम आ जाएगा. Believe me, this word help has got a immense power. और आप इस वर्ड को जितना अच्छे से यूज कर सकते हो, यूज करो. मैं बता रहा हूं अपना एक्सपीरियंस, इट वर्क्स. अगर मैं 10 एप्लीकेशन भेजूंगा ना ऐसे, आप बिलीव नहीं करो, मेरे 5 जगह से आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आता है, सेंड मी रिज्यूमे. और मैं किसको भेजता हूं मालूम है? छोटे लोग कम नहीं भेजता हूं, सिर्फ सीनियर मैनेजर, मैनेजर टू सम एक्सटेंड, या सीईओ, सीएमओ, मार्केटिंग हेड, उन सभी को भेजो. एचआर वालों को गलती से भी मत भेजना. मेरा रिक्वेस्ट है. एचआर वाले दुनिया के सबसे बड़े गधे. बोलो क्यों? They underestimate you. नहीं, देखो, अभी आपके घर में अगर पानी नहीं आएगा तो सबसे ज्यादा तकलीफ घर में किसको होती है? आपकी अम्मा को. खाना मम्मी उनको को. बनाना होता है, करेक्ट ना? पानी के लिए चिल्लाएगा कौन? अम्मा चिल्लाएगी, करेक्ट है ना? और
आपके घर में पानी का कनेक्शन को कौन ऊपर नीचे करता है? सिक्योरिटी गार्ड। अब आपके घर में पानी नहीं आ रहा, सिक्योरिटी गार्ड को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। उसको जब कोई बोला भाई पानी ऑन कर, तो वो जाके ऑन करेगा। तो एचआर वाले हैं वो नौकर, जिनको कोई ऊपर वाला बैठ के ऑर्डर देता है, हमको ये बंदे चाहिए, लेके आओ, तब वो जागते हैं, काम करते हैं। लेकिन जरूरत किसको एक्चुअली? ये उस मैनेजर को जरूरत है, उस सीईओ को जरूरत है जिसका धंधा तकलीफ में है। सो आप उसी बंदे को रिक्वेस्ट कीजिए जिसको वाकई जरूरत है। एक तो वो एक बड़ा गंदा वर्ड है PIA, पता है ना? आप लोग पता लगाने का मतलब क्या, मैं आई विल नॉट टेल यू द मीनिंग। सो जिसको तकलीफ होती है आप उनके पास ही जाके अपना दुखड़ा रोइए, या जिनको जरूरत है आप उनको अपना चीज बताइए। दे वुड बी एबल टू लिसन टू यू, दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड यू, एंड दे वुड बी इन ए कैपेसिटी टू हेल्प यू एज वेल। ये नौकर के पास कभी मत जाना। अगर आप में से कोई HR वाला हो तो बुरा मत मानना, बट आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, because HR department is only meant for getting an instruction, delivering that instruction. They are good for nothing. Right? So always when you're asking for help, connect with the right people, seek a help, and take my word, I'm giving my guarantee कि आपको success guaranteed मिलेगी। Okay? Try it out. Yes, sir. Right? So this is how you have to use LinkedIn for your own personal growth, personal job hunt. मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में ना इस जॉब को लेके इतना स्ट्रगल किया हुआ है कि उतना मेरे ख्याल से नो वुड हैव गॉन थ्रू दैट वन। क्योंकि जैसे अपना मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ईयर 2000 वाज देयर व्हिच वाज बेसिकली द रिसेशन टाइम। मार्केट में कोई जॉब नहीं था उस वक्त, ईयर 2000 की बात कर रहा हूँ। देन 2008 द सेम थिंग गॉट अगेन कमिंग बैक राइट नाउ इन 2020 एक्चुअली। अगर आप देखो तो पीपल हैव स्टार्टेड लूजिंग द जॉब, मार्केट में जॉब्स नहीं है, और जो भी है पीपल आर कीपिंग इट सेफ, क्योंकि अभी इकोनॉमी इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है, पीपल आर ट्राइंग टू बैलेंस। ठीक है, इट विल एटलीस्ट सम टाइम फॉर द कंपनीज टू स्टेबलाइज। गवर्नमेंट इज स्टार्टेड गिविंग द क्या होते हैं उसको रिबेट वगैरह देना चालू कर दिए हैं, दे आर गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कंपनी टू सर्वाइव। So in this turbulent time, They're getting a job removing is certainly being a people lucky. from the job. Yeah, absolutely, yes. Yeah, in my brother's company, they were like 19 in his team, Mhm. and 8 were removed yesterday. करेक्ट बेटा, ये कॉस्ट कटिंग Yeah. हर जगह चल रही है अभी तो, और बिलीव Everywhere. ये चलेगा, 1 साल तक चलेगा, क्योंकि लॉस इतना हुआ है, उस लॉस को रिकवर करने में 1 साल का टाइम लगेगा, प्रोवाइडेड कुछ और तबाही न मचे। मतलब ओनली दे आर कीपिंग दोज पीपल जो बहुत ज्यादा इनकी कंपनी के लिए काम के हैं, और बाकी सब। हाँ, अभी वही है ना कि देखो, वगैरह। अभी एक बंदे का काम 2 और लोग मिलकर कर सकते हैं, कोई पुराना एम्प्लॉय है दोज हु कैन मैनेज द टीम एंड एवरीथिंग, तो ऐसा करके लोग रख रहे हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, सो ड्यूरिंग दीज टाइम्स ऑल्सो, अब ऐसा तो नहीं ना कंपनी में जरूरत नहीं है, लोगों के पास रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, रिक्रूटमेंट अभी हो रहा है, लेकिन जो पहले मास रिक्रूटमेंट होता था वो कम होके अब लिमिटेड हो गया है। सो अभी बात है जहां पर बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल थी, और एक जॉब पे पीछे मान लो 100 लोग थे, आज की डेट में एक जॉब के पीछे 1000 लोग हैं, तो कॉम्पिटिशन एनीवेज बहुत टफ हो गया है। तो इस टफ टाइम में अगर आप रेगुलर रूट फॉलो करोगे तब तो नौकरी नहीं मिलने वाली है। You have to find out another way, alternative way, how you can make yourself better rich. ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज आप ध्यान रखिएगा लाइफ में हमेशा कि जो सबसे बेस्ट होता है, कंपनीज डू नॉट वांट द बेस्ट। आपको लगता है कि मैं हमेशा टॉपर रही हूं, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू द बेस्ट थिंग्स। नो, कंपनी डू नॉट वांट द बेस्ट। क्यों? ऑन वाई? अभी कुछ कुछ कंपनी होती हैं, दे आर लुकिंग फॉर पीपल जो कहते हैं कि हमारा सिस्टम रेडी है, हम कोई बंदा आ जाए ठीक ठाक बंदा, वो आके बस उस काम को करते रहे, हमको ज्यादा टैलेंटेड बंदे नहीं चाहिए। क्यों? उनको लगता है ज्यादा टैलेंटेड बंदे आएंगे, कुछ दिन काम करें, फिर नौकरी रेज में हमको और बढ़ाइए, सैलरी बढ़ाइए, सैलरी बढ़ाइए, सैलरी बढ़ाइए, वो रोने लगेंगे और वो टसल होगा, फिर छोड़ के जाएगा, और देन देयर सिस्टम विल गो करप्ट। तो एज अ ओनर वो कहते हैं हमको ऐसा बंदा चाहिए जो कि टिके, ज्यादा पैसा डिमांड करे, ज्यादा सुपर हाई डुपर स्मार्ट बंदा ना हो। कुछ कंपनी दे वांट कि वी वांट वन गाय हु शुड बी सुपर स्मार्ट, ही और शी कैन टेक अप द जॉब
ऑन इट्स ओन, अपने आप में कॉन्फिडेंट हो और सब काम खुद कर सके। उसको ज्यादा पैसा देने की जरूरत पड़े, हम ज्यादा देंगे। So here you see the mindset of the organization changes, and basis there they are going to, उनके लिए जो फिटमेंट का डेफिनेशन है it varies from company to company. किसी कंपनी में they are going to look at somebody who is mediocre, ज्यादा टैलेंटेड नहीं, ज्यादा गधा नहीं, बीच का बनना चाहिए मेरे को। Some company they look at only the talented guys, the best super guys in the world. वो उसको जो मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। Some people say नहीं हमारा बजट इतनी है, इस बजट में जो फिट होता है ले लो। Understood? So do not think that कि आप ज्यादा सुपर डुपर स्मार्ट नहीं हो तो आपके लिए जॉब नहीं है मार्केट में, या एकदम आप गधे आपके लिए जॉब नहीं है। इट मीन्स जॉब्स आर मेंट फॉर यू, हर किसी के लिए जॉब है, बट डिफरेंस क्या होता है, वो फिटमेंट कहाँ बैठता है, किस कंपनी को कैसा बनना चाहिए। अगर वो फिटमेंट बैठ गया आपकी जॉब आ गई, फिटमेंट नहीं बैठता है तो या आप कंपनी को रिजेक्ट करते हो या कंपनी आपको रिजेक्ट करती है। So the rejection which happens mostly fitment नहीं होता, उसकी वजह से होती है कि आपके कैपेबिलिटीज, आपके नॉलेज के बेसिस पे ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आते हैं। अंडरस्टूड? सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता है आपका जो नॉलेज है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसका सिर्फ 30% कंट्रीब्यूशन होता है आपके नौकरी में। बाकी 70% कंट्रीब्यूशन आपका होता है आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर में, आपके अप्रोच स्टाइल में, आपके थॉट प्रोसेस में। ये सारी चीजों से मिलके तो 70%। इट मींस अब आप देखते हैं ना, कुछ को भी लोगों को सुना होगा यार, एक फलाना कंपनी में एक ऐसा बंदा है साला कोई काम नहीं करता है और मस्त रहता है, उसको पूरा पैसा मिलता है, और दूसरा बंदा है दिन भर लगा रहता है, काम करता रहता है, उसकी सैलरी कम है, उसको लोग हमेशा खटाते हैं। राइट? अब आपको ये नहीं पता भैया, जो बंदा दिन भर घूम रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ही इज एबल टू ब्रिंग टू द कंपनी। वो तो जो ऊपर बैठा बॉस है उसको पता है यार, इस बंदे ठीक है ऑन द फ्लोर वो कुछ नहीं करता, बट वो जो काम कर रहा है कोई और आदमी नहीं कर सकता है। दैट इज व्हाई दैट गाय इज देयर इन द कंपनी। राइट? सो और मे बी हो सकता है वो एक ऐसा बंदा है कि उसकी वजह से पूरी टीम जो है, पूरी कंपनी जो है एक ग्रुप होके काम कर रही है, सब उसको लाइक करते हैं। राइट? ही इज एबल टू क्रिएट दैट इकोसिस्टम इन द कंपनी कि यार कंपनी में एक लाइवली इन्वायरमेंट बना हुआ है, जो कि एक काम बॉस को करनी चाहिए। बॉस के पास टाइम नहीं है तो बॉस कहता है हियर यू मैनेज इट, दिस इज योर जॉब, तुम्हारा काम यही है कि लोगों से काम कराना, बी हैप्पी, मेक एन एनवायरमेंट कि जहां पर काम होता रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं लेना है। और जब बेचारा काम कर रहा है उसको लगता है ये साला वेल्ला घूमते रहता है, जब देखो यहाँ वहां हर किसी पर जाके बैठ के टाल मटोली करते रहता है, टाइम पास करते रहता है। It's not like that. That guy is also doing something which is not being seen. That is another kind of skill set which he has acquired. Got it? So अगर आपको कोई चीज नहीं आती है, यू आर लेस नॉलेजेबल, लेस समथिंग, डू नॉट वरी, डू नॉट उसको ये लेके दिमाग में बैठो मत कि मेरे को जॉब नहीं मिलेगा। यू वुड बी एबल टू गेट अ जॉब प्रोवाइडेड यू आर एबल टू बैलेंस। 70-30 का रेशियो में याद रखना, 70% आपका अदर थिंग्स होती है, आपका प्रेजेंटेशन, योर अपीयरेंस, योर द वे यू टॉक, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द थिंग्स, राइट, योर रेस्पेक्ट टू द पीपल, all those things fall into the 70% area. 30% is hardcore your skill set. Companies look at the balanced guy, a guy who is technologically good and also have got all these required other capabilities. Understood? So never ever feel that कि मेरे को पूरा नहीं आता, I'm not that great, उस बंदे को तो सब कुछ आता है, वो बहुत अच्छा करता है, उसको अच्छा जॉब मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। ठीक है? नेवर फील डिसहार्टेंड कि आपको एक जॉब ऑफर नहीं मिला, यू गॉट रिजेक्टेड, दैट्स ओके। बट हर रिजेक्शन से आपको खाली एक ही चीज सीखनी है कि रिजेक्शन हुआ क्यों, आपको किसी ने रिजेक्ट किया, क्यों किया रिजेक्ट, आपको इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। ठीक है? ताकि नेक्स्ट टाइम आप वो मिस्टेक ना करो। हो सकता है बाय एनी चांस आप इंटरव्यू में गए, बिना प्रिपरेशन के गए और उसने कोई सवाल पूछा आपसे आप कंपनी के बारे में और आप बोल नहीं पाए, तो अगला बंदा सोचेगा यार इसको मैंने कंपनी में इंटरव्यू देने आ रहा है, इसको ये भी नहीं पता कि किस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा है। राइट? सो यूज टेकिंग दैट एज एन क्यू, वो आपको हो सकता है रिजेक्ट कर दें। देन आप यू मेक अ नोट कि भैया अगली बार कहीं भी जाएंगे थोड़ी स्टडी, थोड़ी रिसर्च करके जाएंगे।
right? So every interview will give you some insights कि कहाँ पे mistake हो रहा है, right? Make a note, believe me, make a note. आप किसी और से डिस्कस नहीं कर सकते तो मेरे से डिस्कस करो, right? मैंने बहुत इंटरव्यू दिया है, believe me, right? I would be certainly able to make you feel better or make you or tell you how to answer a particular situational questions, how to deal with it. ठीक है बेटा, आ जाओ. ठीक है, understood how to use it. So go on a LinkedIn and connect with the people, and when you're putting your request, candidly ask for a help. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि बिना मांगे भगवान भी आपको आशीर्वाद नहीं देते हैं. भगवान से मांगते हैं, गॉड गिव मी समथिंग, बोलते हो ना? नहीं बोलते हो? छुप के बोलते हो भगवान आज तो दे दे यार, इतना दिन से आ रहा हूँ, आगे पीछे कर रहा हूँ. When you do not feel shy asking in front of a god, then why you feel shy asking for help to somebody else? लॉजिकली सोचो, करेक्ट? जब मांगना है तो शर्माना क्यों? जब भगवान से नहीं शर्माते तो आदमी से क्यों शर्माते हो? और देना नहीं देना उसके हाथ में ना. हेल्प कर दे, अच्छी बात है, वेरी गुड गाय. नहीं हेल्प कर, बहुत अच्छी बात है, इट्स ओके, गो टू द नेक्स्ट वन. करेक्ट, लॉजिकली सोचो. इज दैट गुड? नाउ कम बैक हियर. नाउ Yes, अब sir. जब आपने रिक्वेस्ट किसी को डाली तो बंदा आपके प्रोफाइल को देखने जरूर आएगा, है कि नहीं? तो मैंने बहुत सारे भाई साहबों को देखा हुआ है, अपना प्रोफाइल तो बनाते तो हैं बट सारा आप डिटेल हाइड कर देते हैं. मेरे हिसाब से आपके रिज्यूमे व्हेन यू आर ऑन लिंक्डइन और एनी सोशल प्लेटफॉर्म पे हो तो भैया आप तो ऑलरेडी एक्सपोज्ड हो, फिर क्यों छुपा रहे हो? आपको छुपाने है तो यहाँ पर रहने की जरूरत ही नहीं है. डू आर नॉट सपोज्ड टू बी ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. वी आर गोइंग टू हाइड योरसेल्फ, योर क्रेडेंशियल, योर डेटा. अरे भैया आपने प्रोफाइल बनाया, मैं आपको जानने के लिए मुझे आपके बारे में जानना पड़ेगा, और मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, आपने सब कुछ हाइड करके रखा हुआ, तो मतलब क्या हुआ? Got it? So make your profile hidden, only those things which you feel are, which can be exposed only to the people who are in your close connection group or something. But otherwise, whatever is in generic, which is supposed to be seen by people, make it visible to the people. इसका मतलब क्या हुआ? When you go and look at a profile here, you see V profile. ये रहा एडिट पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल. नो आप लोगों ने अपना प्रोफाइल तो बनाया है, मैंने देखा कुछ लोगों के प्रोफाइल में कुछ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है, कुछ ये है, डज नॉट साउंड्स गुड. मेक इट अ क्लीन यूआरएल. जैसे देख रहे हैं linkedin.com इन जयंत नंदन, प्लेन सिंपल. सो हाउ टू डू दैट जॉब? गो टू एडिट प्रोफाइल एंड यूआरएल. यू सी हियर, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पेंसिल मार्क पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे क्लीन प्रोफाइल अपना नाम प्रॉपरली दे सकते हो. ठीक है? वो कुछ अल्फा, जैसे मैंने रिज्यूमे कुछ लोग मैंने देख रहा था, रिज्यूमे आप लोगों ने डाला तो है बट मजा नहीं आया मेरे को. डोंट डू दैट. ये देख रहे हैं linkedin.my light MW लाइट, अमर गुप्ता 067856 लग रहा, पूरा एटीएम कोड दे दिए. मेक इट क्लीन, इट डज नॉट लुक नाइस. ठीक है? और ज्यादा हो तो आप linkedin.com योर नेम और उस पर आप हाइपर लिंक कर दो, तो ये बाकी चीजें नहीं दिखेंगी. अंडरस्टूड? नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये Yes, sir. चलो मैं बता देता हूँ आपको. अभी मैंने कहा जैसे अभी ये भाई साहब का प्रोफाइल है, एडिट हो यार. ठीक है, कंट्रोल C, ओपन इन अ टैब एंड चेक इट आउट फर्स्ट. ये मेरे थर्ड लेवल कनेक्शन है, हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है. करेक्ट? ये मेरे दूर के पड़ोसी हैं. ठीक है,
Come on, man. मेरा सिस्टम स्लो हो गया क्या हो गया पता नहीं चलता. ठीक है. So I'm saying, so this, rather than having this, अभी आप लोग कॉपी कर लो and go to the LinkedIn here. So पहले आप वहां जाकर चेंज कर लीजिए. अगर नहीं हो रहा आपसे, then better go and put an hyperlink. So like this, it says hyperlink. Put the original link here. और इसको मैं कहता हूँ, सॉरी, linkedin.com/Amar. AMAR. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस. इतना मैं कर दिया और इस पे अब मैं हाइपरलिंक डाल देता हूँ. अबे यार, क्यों नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा, क्यों नहीं ले रहा है. हाइपरलिंक, टेक्स्ट टू डिस्प्ले. Okay, is that okay? So Yes, now sir. this will become a clean URL. So people will click here, they will go to your profile in which ways. So देखने में neat लगता. So better I could say, rather than doing this job, the better way is go and change your URL itself. The best way. ये मनुष्य चिल्लर है तो वही है. चिल्लर क्या नाम उसका? मिस वर्ल्ड, करेक्ट. भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी कानपुर कल्याण. Okay, come back. All right, understood this portion. Then below you see is the profile visibility. आप क्या क्या डेटा अपने प्रोफाइल पे दिखाना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते हो. लाइक बेसिक रिक्वायरमेंट, नेम, दिस विल बी शोन टू द पीपल. प्रोफाइल फोटो, आपको अपने सिर्फ फर्स्ट लेवल कनेक्शन को दिखाना है या पूरे नेटवर्क को दिखाना है, यार ऑल इंडियन मेंबर्स है, और यू वांट टू शो टू द पब्लिक. सो आई, इफ यू सी, आई हैव केप्ट मोस्ट ऑफ थिंग्स इनटू माय पब्लिक डोमेन बिकॉज आई एम ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म. एंड जितना लोग मेरे बारे में जानेंगे उतने लोग मेरे से कनेक्ट करेंगे. देन व्हाई टू हाइड? Correct. There's no shame. I don't have any shame in showing my data, whatever I have got. So I keep it everything open so that people are going to get to know more about me and they would be happy to connect with me for a business or commercial activities. ठीक है. सो आप अपने प्रोफाइल को विजिबिलिटी मेंटेन रखिए, क्लीन यूआरएल रखिए. उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका अपने प्रोफाइल को बेहतर बनाना. Right? This is the most important thing in entire LinkedIn. So when you create a profile, make sure that you should have the better information available to you. Let me take it back here first. ठीक है. The first thing first you see on top is the cover photo. So cover photo आप ऐसी डालिए जो कि आपके स्किल सेट्स को, आपके एक्सपीरियंस को, आपके वर्क को, या कोई ऐसा कोटेशन जो आपके आपके पर्सनालिटी को सूट करता हो, इनहांस करता हो. यू पुट समथिंग ऑफ दैट काइंड, इट लुक्स गुड. ठीक है. सेकेंड थिंग इज योर पिक्चर. आप ऐसी फोटो डालें जो कि डिसेंट हो, मतलब थोड़ी सी, ट्राई टू अवॉइड एनी पिक्चर विच इज हैविंग वर्गुलरिटी, या फिर वो यू नो सेल्फी वाले पिक्चर्स जो हैं वो सबको डालना अवॉइड कीजिए. डज नॉट साउंड प्रोफेशनल. क्योंकि ये प्रोफेशनल नेटवर्क है रादर देन अ सोशल नेटवर्क विच यू सी ऑन अ फेसबुक. फेसबुक पे इफ यू पुट समथिंग very funny, very humorous, people are going to love it. But here, people start creating the images about you. Right? अभी आपने कोई सेल्फी वाली पाउट बना के मुंह डाला तो बोलेंगे यार इनको अक्ल नहीं है, क्या फोटो कहाँ डालनी चाहिए. Right? Because it's all people will think. उनको नहीं पता आप कितने अच्छे इंसान हो, या फोटो आपके किसी फ्रेंड ने डाल दी मजाक मजाक में. But whatever it is being done, it will create a persona about you in somebody else's mind. So try to put some good picture which will create the positiveness about your profile. ठीक है. Then below is the what do you say, the header section of your profile which talks about your headline. Click on here and you can change your headline here. So it will take your first name, last name, then headline.
Tell people that you are a digital marketing professional, you are a digital marketing executive, or you are working with XYZ company as an intern. Mention it on headline. ठीक है, मैंने कई लोगों को देखा हुआ बड़ा सुपरलेटिव टर्म्स यूज करते हैं. आई वांट टू बिकम द नेक्स्ट मिलीनियर बिलीनियर वट एवर इट इज गुड टू पुट, बट I do not know how it is going to substantiate for you. If you're looking for a job, you're putting that kind of a quote, so gel nahi karta hai, right? So try to be what you want to be. मतलब do not show something for. Realistic. हाँ, रियलिस्टिक हो, रियलिस्टिक लगे. फैंसी दिखने के लिए या खाली मतलब अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए डू नॉट पुट द कंटेंट, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है. When you look at read your profile, the way you have been written your profile, the way you have given your data, the things what you have mentioned, from that it is very obvious to understand कि बंदे में कितना डेप्थ है या नहीं है, कितना मटन है उसके बंदे में. राइट, मटन मतलब यू नो लाइक द वेटेज, हेवीनेस. मास अरे वो वाला नहीं, मास भी तो 80 ही होता है. वजन वजन वजन. हाँ करेक्ट. नहीं वो नहीं, हिंदी यू वाला. सेड मटन. मटन को मास भी बोलते हैं और मास में वेट भी मास होता है. दैट इज व्हाई आई ओह माय सेड गॉड. करेक्ट, करेक्ट. दिस वर्ड विल सूट इन बोथ साइड. Very nice, right? Then you mention your position where if you're working as an intern, whatever it is, just go and choose the appropriate one, country, location, so on so forth. ठीक है, ये आपका पहला प्रोफाइल सेक्शन का है ऑप्शन, which is called as intro part. After the intro part, ये आप नीचे दिख रहा है open to work, ये आप लोग यूज कर सकते हो, but right now this is only shown to the recruiters. But आप लोग, अगर आप लोग जब भी जॉब खोज रहे हो, यू कैन कीप इट ओपन, यू कैन मेक इट पीपल, मेक एवरीबॉडी टू सी योर दैट यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन शेयर विद ऑल लिंक्डइन मेंबर्स. उससे हो सकता है कि अगर आपने लिखा है कि यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी इन डिजिटल मार्केटिंग एज एन इंटर्न, तो अभी किसी कंपनी को जरूरत है इंटर्न की, हो सकता है वो आपसे अप्रोच कर ले. करेक्ट. सो इट इज गुड टू कीप इट ओपन. बट ये आप कब यूज करोगे? अब मान लो आपने किसी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली, आपको मजा नहीं आ रहा, मन ही मन में बहुत खटक रहा है, और आप जॉब खोजना भी चाहते हो, अपनी कंपनी में बताना भी नहीं चाहते कि आप जॉब खोज रहे हो, तब यहाँ पे आता है ऑप्शन कर लो. आपका ये डेटा सिर्फ रिक्रूटर्स को दिखेगा, आपके अदर एम्प्लॉयज, आपके कलीग को नहीं दिखेगा. गॉट इट? So what if you are searching people to give jobs? क्या बोले? If you are searching people to give jobs, सर्चिंग पीपल टू, मैं समझा नहीं बेटा. like अभी यहाँ पर I'm making a profile हाँ, to get job. Okay. टू गिव जॉब, यू आर Yeah. ऑफरिंग अ जॉब. Yeah. In case if I have to do that, how to do it? वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर. सो एक तो है आप अपने जो यू कैन डू अ पोस्ट हियर, राइट? इफ यू बी ऑन योर वॉल, start a post. So here you can do the posting, and I think share a document. So यहाँ अगर आपका कोई वो पड़ा हुआ है जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह है, तो वहाँ पे वो फाइल अपलोड कर सकते हो. एंड लेट्स से आई डू अ पोस्ट हियर, पोस्ट celebrate on occasion, share what your share that you are hiring. Can you see here? ये ऑप्शन चेक कर लेंगे तो आप जो पोस्ट बनाओगे दैट विल शो इन द जॉब सेक्शंस. अंडरस्टूड? फाइंड एन एक्सपर्ट, आप कोई एक्सपर्ट खोजना चाहते हो, आप उसके बारे में लुकिंग फॉर, उसे क्या खोज रहा हूँ मुझे नहीं पता, बताओ क्या खोजना है. लुकिंग फॉर टेली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. मेरे को सच में चाहिए टेली सेल्स, कोई है बताना अपनी नजर में. हाँ? डेटा एंट्री नहीं बे, डेटा एंट्री मुझे नहीं चाहिए. डेटा एंट्री का जमाना चला गया, आजकल सिस्टम ऑटोमेटिकली डेटा एंट्री कर लेता है. कॉलिंग में टारगेट होता है? नहीं, बिना टारगेट के कॉलिंग है. Outbound and inbound calls.
ठीक है, I'm just putting something like that, and then I can go and find an expert. It says select a category: accounting, coaching, mentoring, design, marketing, right? What type of marketing help? एडवर्टाइजिंग. अच्छा, ये तो एक्सपर्ट हो गया. सॉरी, एक्सपर्ट मतलब हो गया कि आपको कोई कंसल्टेंट चाहिए. ठीक है, आप किसी काम में मान लो आप फंस गए एडवर्टाइजमेंट में, आप ऐड कर अपनी कंपनी में एंड यू आर स्टक इन गूगल एड्स. अब आपको कोई हेल्प चाहिए गूगल एड्स में, देन इन दैट केस दिस एक्सपर्ट विल कम. तो अभी हम इसके जाए, गो बैक बटन, एंड आई कैन गो एंड व्हाट इज इट यू आर हायरिंग, सिलेक्ट कंपनी. अरे यार, इसको ले लेते हैं. जॉब टाइटल टेली सेल्स कर दूं. एक्सेटिव बैंगलोर. करेक्ट. बैंगलोर इंडिया. फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, टेम्पोररी, अदर वांटिंग. कौन सा डालूं? इंटर्नशिप डाल दूं, पार्ट टाइम डाल दूं? पार्ट टाइम. पार्ट टाइम. नो रेवेन्यू टारगेट. ठीक है, अब खुश. ठीक है. So in this way my job which I've created right now here, it will be posted. Excuse me. Understood? Right, so this is the post part, but right now we were doing something, you brought me here unnecessarily. All right, come back. So understood this portion? Now then comes the about section. This Yeah, is a sir. very important section. So here you have to go and write your story. Rather than calling story, I could call it as a, देखो ये जो सेक्शन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. एंड दिस सेक्शन में भी आप लोगों का अभी लेवल के जॉब के लिए उतना सुटेबल तो नहीं रहेगा, बट व्हेन पीपल मूव ऑन टू सीनियर लेवल पोजीशंस, तब ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज द रिमेंबर आई टोल्ड यू दिस, व्हाट यू से, ये एग्जीक्यूटिव सर्च कंपनीज, ये जो बंदे होते हैं, दे first try to understand about the candidate. So candidate को जानने के बारे में, for them to understand about the candidate, they read through this content. और यहाँ से अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, किसी ने अच्छा लिखा हुआ है, then candidate के बारे में काफी सारा insights मिलता है. And from that they're able to make out a decision कि this person would be suitable for whatever hiring position they're going to hire for him, consider him. ठीक है. तो यहाँ पर इस प्रोफाइल को mainly what I recommend is write in 3 sections. Number 1 section which is going to talk about what is that you have been doing in terms of your career. जैसे देखो, मैंने जो लिखा, मैंने पहले स्टेंजर कहता है, student first, me next 18 years of teaching, consulting, marketing, sales and business development experience. I had an opportunity to create experience, entrepreneurs, successful startups and great digital marketers working in MNCs. Firstly, it was with then, here if you see, in a very logical way I've mentioned about the companies where I have worked, whatever I did in a very systematic manner. Right? Then I also talked about also this stint in corporate doing the digital marketing. So यहाँ पे मेरा ऊपर हो गया education का, teaching का. Then here I mentioned about my experience with the companies where I worked with. Then here I mentioned about my work philosophy. What is that I believe in? What is that I deliver as my expertise? And you see below, specialties I've mentioned more about my key things which I am capable of, whatever I can deliver to a company. Got it? Then here comes my professional Yes. objective. So what is that I'm looking from my career? मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूँ, अपने मतलब वर्क लाइफ में क्या चाहता हूँ, what is that I want to attain, I want to grow. So this is where I mention my objective. Got to see?
and then wrap it up. So this is how you should actually create your profile, because this is going to be the important thing what people are going to look at. Understood? ताकि लोगों को आपके प्रोफाइल के बारे में ज्यादा नॉलेज मिलती है, दे गेट मोर इन्फॉर्मेशन. इट इज एक्चुअली, इनफैक्ट अगर आपको याद हो, जो दिन हम जॉब रेज्यूमे को लेकर हम जब बात कर रहे थे, आई थिंक एवरीबॉडी मिस्ड आउट वन थिंग, दैट आप जब रिज्यूम भेजते हो, रिज्यूम के साथ में आपको एक कवर लेटर भेजना होता है. डू यू नो व्हाट इज कवर लेटर? हेलो? बॉन्ड वाला? नहीं रे बाबा, बॉन्ड तो कंपनी देगी आपको. देन आप जब अप्लाई करते हो खाली रिज्यूमे चिपका देते हो. तो मैंने कहा Yes, रिज्यूमे sir. सिर्फ चिपकाना नहीं है, आपको कहानी भी लिखनी होती है. डियर फलाना सर, मैं हूँ, ये हूँ, वो हूँ, फलाना ठिकाना. That the email what you write in the body copy, it is called as a cover letter, cover email, जिसमें आप अपने प्रोफाइल को इन अ वेरी नटशेल बताओ. देखो जरूरी नहीं हर आदमी आपको प्रोफाइल क्लिक करके ओपन करके देखेगा. सो बिफोर दे ओपन दैट वन, आप उस कवर लेटर में इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर दो पैराग्राफ मैक्सिमम आप उसमें बताते हो आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका कितना एक्सपीरियंस है, वेरी नटशेल, and then you show your willingness that you are willing to work with the company. Kindly help me with an opportunity to meet and see you. उसको कहते हैं कवर लेटर. यस सर. ठीक है? तो कुछ कंपनी में कवर लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बिना कवर लेटर के वो रिज्यूमे एक्सेप्ट नहीं करते हैं. उनका साफ साफ कहना है कि जो बंदा एक कवर लेटर लिख नहीं सकता है वो हमारे यहाँ क्या नौकरी करेगा. जिसको कवर लेटर लिखने नहीं आता है, जिसके पास इतना टाइम नहीं को कवर लेटर लिख सके, कल को मेरे यहाँ कोई इंपॉर्टेंट जॉब होगा, वो कैसे पेशेंटली इस पे काम करेगा. दिक्कत है एनालॉजी, और उसकी वजह से वो रिजेक्ट कर देते हैं. तो उनको सिर्फ एक ही कहना है कि जो बंदा कवर लेटर नहीं लिख सकता वो क्या करेगा फालतू. आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, मैंने भी उस पर अप्लाई नहीं किया एक्चुअली. इट्स बीन लॉन्ग टाइम. रूबी, ओके, still looking, okay. Parvati Matka, Pinto, no, Sami, Nikhil, Ashish, Kritika, Vineet, Arya, Larson, Jennifer, Lisa, Siddharth, Priyanka, Fanindra, Amit Jasrotia. कहाँ गया भाई? Joy. I'll show you very quickly. It won't take much time. Sanjay Mishra, Vijay Krishna Saigal, Lata Ravi, Sumil, Priyanka Jain, Tushar, Chetan, संजय, अक्षय सोरवे. अब अक्षय भाई ने मेरे को मेल भेजा कि यार आपको अप्लाई करना है तो मेरे यहाँ फॉर्म भरो. मैंने उनको रिज्यूम भेजा. आई सेंट माय रिज्यूम टू हिम, बट ऑन दैट दे केम बैक टू मी सेइंग दैट प्लीज फिल अप द फॉर्म and data. So it has got 5 stages. We see it is going to be very elaborative. काफी elaborated है. They are asking you certain questions. Let me see. I pull the data. Your skills and strength. Now you're asking me what is that I'm great at. List 3 websites that you refer to keep yourself updated on digital marketing. Do you see? ये सब क्वेश्चंस आपको भी आ सकते हैं कि आप कौन कौन से वेबसाइट को रेफर करते हैं मेनली टू अपडेट योर नॉलेज.
एक तो मेरी वेबसाइट होगी जिसको मैं डाल दिया, देन HTTPS SEO जर्नल का साइट कौन सा है? सर्च इंजन जनरल कहाँ गया? कौन सा था एक और साइट? HBR। हो गया। What digital marketing tools platform you use for media buying? Media buying platforms. Sorry, what are the things in campus you have worked? You may share link of camp. आप तो ये डेटा मेरे पास में नहीं है। क्रिटिकल कैंपेन, हाँ, सब कहानी लिखने का टाइम नहीं है मेरे पास में। So you do not do that, by the way. You can mention if you got something. Right now is a case study. What are the key metrics you looking to determine your ad copy performance? Account has 20%. So there are some taking some questions. Account has 20% average daily conversion on a given day. Has no conversion while metrics remain same. What are the top things you would do to do this one? Step 5, mention how about this. So you see there are some case-based questions which they are asking. Okay? I'm just putting some crap right now just to move on to show you other questions, whatever they've got. Next. Then, sir, what are your ideal job profile? How many years of experience you have got? Overall experience, current CTC, expected CTC, notice period, extra space for you if you want to write something else about to creativity, link of your LinkedIn profile, upload a CV, and finish. Got it? So sometimes people ask you so many different questions which you are supposed to answer, because basis this only they are going to consider you for the position. In a similar way, some companies will also expect you to go and write the cover note as well. Understood? Is that Yeah, okay? but this seems so advanced. हाँ बेटा, This seems little advanced. हाँ वो तो The question. senior position के लिए था, so that is why it is having advanced question. But for Okay. you all also, this question might come in similar way. They might ask you which tools have you used, have you done any campaign, what is CTR, what is the CPC and everything. So that is why I'm insisting you all every day कि आप एक लाइव कैंपेन करो, डेटा आपके पास रहेगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि जब हायरिंग होती है ऐसे सवाल पूछते हैं और ऐसा डेटा आपसे मांगा जाएगा। और जानते हैं ऐसा क्यों पूछते हैं, आपको पता है? क्योंकि आप इंटरव्यू जाओ, को आपसे पूछे आपने कैंपेन किया, आप तुरंत हाँ बोल दे, हाँ किया है। अब हाँ हर कोई बोलेगा, 99.99% एवरीबॉडी विल से हाँ, बट उनमें से पता चला एक बंदे ने खाली बेचारा कैंपेन किया, बाकी सब लोगों ने झूठ बोला है। तो झूठ को पकड़ने के लिए वो क्वेश्चन करते हैं, टेल मी द व्हाट वाज द सीटीआर, व्हाट वाज द सीपीसी। अगर आपने किया है तो आपका डेटा है, आपने नहीं किया आपका डेटा भूल जाओगे। गॉट इट? तो उसका मैं इसलिए आपको बार बार इंसिस्ट करता हूं कि छोटा बजट में कैंपेन करो, बट आपके पास आपका डेटा तो रहेगा आपको कहने के लिए। यू कैन टेल वेरी कैंडिडली, सर मैंने कैंपेन किया था, टेस्टिंग कैंपेन था, 50 रुपए का डाल के, और मैंने ये डेटा मैंने देखा था। गुड, दैट्स इनफ। उनको पता है कि बंदे ने 50 रुपए टेस्टिंग करके डाला हुआ है, 50 का 5,000 करने में कोई दिक्कत नहीं, डेटा में थोड़ा बहुत चेंज है, बट मॉरल इज सेम। बंदे को पूरा एक्सपीरियंस तो है साइकिल का, कैसे करते हैं काम।
राइट? इसलिए मैं आपको बोलता हूँ करने के लिए, और कोई रीजन नहीं है। आपको पता है मैंने बताया था ना, जब मैंने अपनी जॉब्स खोज रहा था, जब मैं इंटरव्यू जाता था, मेरे को बिलीव नहीं करो, मैंने मैंने बोला आई लर्न एवरीथिंग ऑन माई ओन, कहीं गया नहीं पढ़ने के लिए, और खुद ही अप्लाई करता जॉब। जब मैं जॉब में जाता था तो मैं वेबसाइट से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, आई यूज्ड टू शो देम माय वेबसाइट, सर ये मैंने काम किया हुआ है। मोमेंट हम्म जब उसके साथ बात, मैं भी नया नया था, मुझे भी नहीं पता, मैं बोला हाँ मैंने गूगल ऐड किया, मेरे को आता है गूगल ऐड, फेसबुक ऐड आता है। जैसे मैं डाल करता तो लोग उसमें मुझे क्वेश्चन पूछा, अच्छा बताओ आपने कैंपेन किया था, आई यूज्ड टू क्रिएट अ स्टोरी, मैंने किया नहीं था, मेरे को पता है, मैं बोलता था। फिर वो पूछता था अच्छा सीटर कितना था, आई गिव सर्टेन नंबर। बाद में यार रियलाइज, यार जो मैं नंबर बोल रहा हूँ वो नंबर रियलिटी में आ ही नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा तोप बन जाऊं मैं डिजिटल मार्केटिंग में, हम्म बिकॉज इट इज एन एक्सपीरियंस। वो बंदा को पता है, जब मैंने बोला 5% में सीटीआर था, सीटीआर 5% किसी भी सूरत में नहीं आ सकता है, बट उसके लिए बहुत ही तगड़ा कैंपेन आपको जाना पड़ेगा, यू हैव टू डू, यू हैव टू शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ कपल ऑफ इयर्स। अब वो बंदा बोल रहा है आप 1 साल के एक्सपीरियंस में आप 5% सीटीआर आपका आ रहा है, बुलशिट। 1% भी आ yeah, जाए they काफी है, catch you immediately. करेक्ट। तो वहां पे पता लगा मेरी और ऐसे ही मैंने कितनी सारी जॉब गई, आई वेंट टू गूगल एज वेल, गूगल में रिजेक्ट किया गया मेरे को, राइट? द पॉइंट हम्म वाज आई वेंट अहेड विद अ लिटिल एक्सपीरियंस, और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि जयंत आप ये डेटा नहीं, आप करके देखो, देन यू गो इन इंटरव्यूज एंड शो दिस नंबर्स। I learned all this thing from repeat mistake which I was doing. Then I realized it was wrong. I should not be bluffing any time. क्योंकि जो बंदा वहां बैठ के इंटरव्यू ले रहा है ना, वो गधा नहीं है, उसने सब किया हुआ है, तभी वो आंसर क्वेश्चन में से पूछे कि उसके पास आंसर है, राइट? और मैं उस बंदे को उल्लू बनाने जा रहा हूँ जो कि मास्टर अपने आप में, राइट? सो दैट्स आई एम सेइंग। सो मैं नहीं कहता कि झूठ मत बोलो, झूठ बोलो, बट बहुत ही केयरफुली, इतना बोलो कि जितना डाइजेस्ट हो अगला आदमी को भी, कि इंटरव्यू में भी झूठ चलता है, बट अब 90% झूठ नहीं, आप 10% झूठ बोला, दैट इज एक्सेप्टेड, बट नॉट मोर देन दैट। मैं रेकमेंड करता हूँ झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, exactly. है ना? क्योंकि झूठ जैसे बोलोगे तो पहले आपकी जुबान लड़खड़ाएगी, जैसे Yeah, जुबान लड़खड़ाती है फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है, yeah, if you're not used to it, why to change your एग्जैक्टली whole exactly. और role there? अगले आदमी को तुरंत समझ आता है कि जैसे आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हुआ, आपका टोन चेंज हुआ, वो समझ जाएगा कि अब बेटा तुम तो गोली दे दिए रहो, राइट? सो बेटर बी कैंडिड, जो आता आता नहीं आता, बट जो चीज नहीं आता है आप उसके लिए उनको बोलिए, आई डू नॉट नो राइट नाउ, आई वाज नॉट having an idea about their But I could learn. yeah, I don't I haven't given emphasis onto this side, but looks like this is a very important area. I will certainly put my time to learn these things in a quick way, ताकि उनको कॉन्फिडेंस लगे। ठीक है, अगर बच्चे को अभी नहीं आता है, इनकेस अभी होता है क्या है, मान लो उस वक्त आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, बट इनकेस उनके सर्च जब करते रहे, उनको कोई बंदा ढंग का नहीं मिला, राइट? एंड व्हेन यू शोड देम दैट पॉजिटिव एटीट्यूड दैट ठीक है मुझे अभी नहीं आता, बट आई एम श्योर आई एम एबल टू लर्न इट, आई विल कम बैक टू यू, राइट? एटलीस्ट आपका वो जो डिस्कशन उनके साथ हुआ था, यू वुड बी इन द गुड बुक्स कि यार बंदे ने ठीक है नहीं आता, बट उसने कॉन्फिडेंस दिया था, सो दे माइट कम बैक टू यू अगेन इन केस दे कुड नॉट फाइंड द सुटेबल पर्सन। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जब भी इंटरव्यू में जाओ, कभी झगड़ा करके मत आना, किसी से बहसबाजी मत करना अननेसेसरी, क्योंकि यू नेवर नो कि वो जो बंदा वहां पे इंटरव्यू ले रहा है, तो दुनिया बहुत छोटी, मालूम है आपको, वेरी स्मॉल वर्ल्ड। इस इंडस्ट्री में, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में कौन कहाँ काम कर रहा है, ऑलमोस्ट पीपल नो ईच अदर, ऑलमोस्ट। आप लोग थोड़ा आगे बढ़ोगे ना अपने लाइफ में, करियर में, आपको जा रहे मेरा दोस्त वहां काम करता है, उसका दोस्त वहां काम करता है, इसका दोस्त यहाँ काम करता है, तो पता लगा यार हम लोग एक दूसरे को जानते हैं बहुत क्लोजली, राइट? सो दिस इज वेरी स्मॉल। सो बेटर है कि जब स्मॉल वर्ल्ड में हो तो झूठ का पर्दा मत पहनना, बी वेरी क्लीन, नीट एंड क्लीन, और गलत काम मत करना, अदरवाइज वो पकड़ में आ जाता है। Even if you disagree, at least leave it with the news. हाँ, डिसएग्री अगर हो किसी चीज से, यू कैन, देखो अगर आपको लगता है कि आप जो कुछ बोल रहे हो एंड यू गॉट ए स्ट्रांग कन्विक्शन, यू गॉट ए रीजन, आप उसको डिफेंड करो। ऐसे नहीं वो बंदा चिल्ला के थोड़ा बोल रहा है, चौड़ा के बोल रहा है, तो आप बोला ना तो ठीक सर आप जो बोल रहा सही होगा, नो, इफ यू नो इट इज करेक्ट देन टेक अ स्टैंड,
बट उसमें होता है कि स्टैंड जब लेते हो बट बी इन ए जेंटल वे। ऐसे नहीं हम चौड़ा सीना खोल के बैठ गए मार दूंगा तोड़ दूंगा, वो सब नहीं। तेरे को मैं देख लूंगा बाहर आ, है ना, बहुत लोग करते हैं ऐसा, ऐसा मत करना। स्कूल में। अरे स्कूल में नहीं बाबा, इंटरव्यू में होता है कुछ लोग ना। स्कूल में तो वी हैव डन अ लॉट। हाँ वो तो खैर वो तो कॉमन है, बट मैं प्रोफेशनल लाइफ में भी पीपल गो एंड टेक रिवेंजेस लाइक दैट। बट आई रिकमेंड डू नॉट डू ऑल दिस। ये सब चीजें आपको ज्यादा दूर तक लंबा नहीं ले जाएंगी। समवेयर अदर वे people will get to see the references and everything. ठीक है भाई, all good? Yes, sir. Yes, sir. Right. Then if you come down below after about us, then comes the featured. So this is the place where now कहाँ की वो आप, वो कौन है यार जो गहना बनाती हैं, गहना, सायरा। Now सायरा और maybe anybody else, if you think like आपके पास कुछ ऐसा कैपेबिलिटी है, ये कैलिबर है जो कि आप लोगों को बताना चाहते हैं। लेट्स से यू आर ग्रेट डिजाइनर, यू आर ज्वेलरी डिजाइनर, और समबडी इज अ ग्रेट कंटेंट राइटर, कोई एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर है, आप अपने कैपेबिलिटीज को, अपने वर्क को लोगों को दिखाना चाहते हो, देन दिस इज द प्लेस। गो एंड अपलोड योर डेटा, योर सर्टिफिकेट, योर डॉक्यूमेंट, योर लिंक्स कैन बी शोन हियर, सो दैट विल गिव अ बेटर एज Yeah. to people to know. They can see your work portfolio and they can take a quick decision. बंदा अच्छा लग रहा बुला लेते हैं। हाँ. If it got something to show, it's easier. Absolutely. But याद रखिएगा, डालना वही जो देखने के लायक हो। Getting my point? मैंने कहा कि you have to show your work sample. तो work sample आप वही दिखाएंगे जो कि कमेंडेबल हो। जैसे आप जाते हो ना, जब आपको लड़का देखने आता है, आपकी मम्मी बोलती है बेटा अच्छे से ड्रेस होना, आप ऐसा नहीं मुंह उठा के आ गई, क्यों? बिकॉज यू आर प्रेजेंटिंग योर बेस्ट। सिमिलर वे ऑन दिस प्लेटफॉर्म यू हैव टू प्रेजेंट योर बेस्ट। Yeah, ऐसा भी best that you didn't believe that I made it. Best देने जाओ तो ये भी हो जाता है। करेक्ट। ठीक है, ऑल गुड। And then below you see it's the dashboard, is your own personal dashboard. लोग आपके प्रोफाइल को कितना लोग देख रहे हैं, कितना आप जो कंटेंट पोस्ट करते हो कितना तक जा रहा है, कितनी बार आप सर्चेस में दिख रहे हो। So it means right now if you see here, so I have been seen in searches for 84 times. कौन खोज रहा है? If you see more number of times your profile appeared in the search results between September 1 to September 8, 8 दिन में 84 लोगों ने खोजा। कौन खोजा है? You can get to see where your searches work. So some people work at Infi, some people work in Melian, Wipro, TCS, iTrace. So इस कंपनी से लोग मुझे सर्च कर रहे हैं। ये जो लोग सर्च कर रहे हैं कौन लोग हैं? तो 9% people are recruiters, 9% people are founders, 8% people are executive directors, 7% people are software developers, and 5% people are marketing specialists. So this is how my profile has been looked for. So you must have chosen any criteria, na? Ki only I want to be seen by recruiters or something. Yeah, that is only for the job. So अभी मेरा job notification मैंने डाला हुआ था. You see here. अब ध्यान दिए शायद नहीं. What I was trying to say is, I'll show you. जब आप अभी LinkedIn ने नया एक चीज निकाला हुआ है. If you're looking for a job, अगर आप नौकरी खोज रहे हो, तो आपके प्रोफाइल में कहाँ गए? आजा, ये देख लो बच्चे का, अनिल कुमार साहब, ये देख लो, ओपन टू वर्क। आजकल ये एक वो फ्रेम टाइप बन जाता है। सो दिस विल हेल्प पीपल टू सी द रिक्रूटर्स, दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब, ओपन टू वर्क। ठीक है। So what I was talking about, so I have not chosen who is going to see my profile. मैंने अपना प्रोफाइल को totally open किया हुआ है. Only for that job post, you are looking for a job, you are open for the job, उस चीज को मैंने सिर्फ hidden किया है other से. It is only seen to be recruiters. So only so, but now if you see what kind of people are coming to your profile, it actually tells you the strength कि आपके प्रोफाइल को किस तरह के लोग खोज रहे हैं.
और योर प्रोफाइल विल सर्चेबल Okay. बट फॉर व्हाट विच काइंड ऑफ कीवर्ड. सो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपने प्रोफाइल को सर्चेबल कैसे बनाओगे. तो यहाँ पे दिख रहा है एचआर एडमिनिस्ट्रेटर, तो यहाँ पे आप वो सारे वर्ड यूज करोगे जिसके लिए आप चाहते हो कि लोग आपको फाइंड करें. डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, एसईओ एक्सपर्ट, सोशल मीडिया मार्केटियर, ये सारे वर्ड आप डालोगे तो एनीबॉडी सर्चिंग फॉर दोस काइंड ऑफ थिंग दे आर एबल टू सी योर प्रोफाइल इन द सर्चेस. Yes, sir. हो गया, समझ आए? Mm-hmm. अच्छा आगे. Yes, sir. ठीक है, तो इससे आपको एक और बेनिफिट ये मिलता है कि यू आर एबल टू सी भैया आपके प्रोफाइल को सही लोग सर्च कर रहे हैं या फालतू लोग सर्च कर रहे हैं. अगर सही लोग सर्च करें तो आपका चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब इज वेरी वेरी हाई. अंडरस्टूड? Yes, sir. देन कम टू कीवर्ड्स योर सर्च फॉर. अभी किस कीवर्ड के लिए मेरे को लोग फाइंड, डेवलपर वर्ड के लिए, अब ये कैसे आ गया मेरे को समझ नहीं आ रहा. ट्रेनर इज ओके, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट इज ओके, स्टूडेंट्स इट शुड नॉट कम, स्पीकर इज ओके. तो ये सब चीजों के लिए मेरा जो प्रोफाइल है सर्चेस में. अब नीचे दे रहा है गिविंग सजेशन हाउ कैन इंप्रूव योर सर्च अपीयरेंस. तो ये कहता है सिंपल चीज, आप अपने प्रोफाइल को एडिट कीजिए एंड स्टार्ट पुटिंग द कीवर्ड्स फॉर विच ऑल कीवर्ड यू वांट पीपल टू फाइंड यू. वो कीवर्ड्स आप अपने यहाँ हेडिंग में डालोगे, अबाउट सेक्शन में डालोगे, और जहां जहां पॉसिबल हो वहां पे आप डाल सकते हो. ठीक है भाई, तो है काम की चीज ना. बहुत. बट आपको पता है ये कोई इसको कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, आपको पता है चीज. हाँ जो मैं सर. आपको बता रहा हूँ ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता. इट इज नॉट कवर्ड इन एनी मॉड्यूल. किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाते हैं इसको. ये मैं पर्सनली अपने आप से पढ़ा रहा हूँ बिकॉज मेरा इसमें इंटरेस्ट है. अदरवाइज आई वुड हैव टेकन यू डायरेक्टली टू द एड दिखा के आपको मैं बाय बाय बोल दिया होता. लेकिन आप लोग ना मेरे पत्नी दिल के बड़े करीब हो, पता नहीं क्यों वो फीलिंग आती है. तो फील लाइक नहीं यार कुछ तो करना चाहिए. ठीक है, देन यू कम डाउन बिलो योर एक्सपीरियंस. नाउ व्हेन यू कम टू द एक्सपीरियंस पार्ट, ऑलवेज मेक श्योर यू इलाबोरेट योर एक्सपीरियंस. आप जो भी काम कर रहे हो आप उसको मेंशन कीजिए प्रॉपरली. आप क्या क्या काम कर रहे हो, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है. और आप अगर उस जॉब में काफी समय से हो तो आपने सर्टेनली कुछ कंपनी के लिए कुछ अचीवमेंट किया होगा, उस अचीवमेंट को भी आप मेंशन करेंगे. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आप अपने प्रोफाइल के बारे में, जॉब के बारे में नहीं लिखोगे तो पड़ोसी लिखने वाला नहीं है. So it is only you. The more you talk about your profile, the more you talk about your achievement, मुझे उतना ही पता चलेगा. वरना मुझे सपना तो नहीं आएगा कि आप लोगों ने इतना बड़ा धाकड़ हो जब तक मुझे बताओगे नहीं. तो ये एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में like how you've written all this which has got some proofs and certification, और उसके अलावा जो है we have like जैसे YouTube चैनल है और यूट्यूबर्स है और फिर इन अदर फील्ड्स आल्सो, और छोटा मोटा एंटरप्रेन्योरशिप का काम जो है, these are also counted as experience ना. बस फर्क ये है कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, so we can just write it here. Yeah, absolutely. देखो ये तो हो गया. आप यहाँ पे देखो लाइसेंस, सर्टिफिकेट, स्किल्स एंड इंडोर्समेंट, देयर कपल ऑफ मोर सेक्शंस एक्चुअली. आप देखोगे यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन है, आपने इंट्रो डाला, अबाउट अ सेक्शन में आप डाल सकते हो काफी कुछ चीजें. और लाइसेंस, सर्टिफिकेट, वॉलंटियर एक्सपीरियंस आप करते हो. वॉलंटियर एक्सपीरियंस होता है ना, आपने कुछ और एक्टिविटीज आपने बाहर की, अकम्प्लिशमेंट्स आप डाल सकते हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल सकते हो एक्चुअली. या मतलब एक्सपीरियंस में भी, because this even gives you experience. The only difference is you don't have a certificate or a proof. That's okay. देखो सर्टिफिकेट, गेटिंग अ सर्टिफिकेट इट जस्ट ऑथेंटिकेट दैट आपने कुछ काम किया, मैं उसके लिए सर्टिफाई कर रहा हूँ आपको. But there are millions of other experiences which people gain from different other works which are not being documented. Right? But you have to tell in though. अगर आपको वो चीज कहना है. Yeah. देखो पहले I'll tell you situation, थोड़ा समझो. आज से कई साल पहले जब इतने सारे प्लेटफॉर्म नहीं थे ना, तब लोग बातचीत करते थे. इंटरव्यू जो होता था घंटों घंटों का इंटरव्यू होता था, उसमें इतनी सारी बातें होती थी, बात करते करते चीजें निकल के आती थी.
आज की डेट में बात कम हो गया, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा हो गया। एग्जैक्टली। अब आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करोगे तो अगला आदमी को पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि आज हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग जबरदस्ती का बिजी हो गए हैं। व्हाट आई एम टेलिंग, वी आर, आज हम लोग जबरदस्ती के बिजी हैं, कोई काम नहीं, फिर भी बिजी हैं, डूइंग बुलशिट थिंग, नथिंग। सो क्योंकि हमको लगता है डेटा तो हर जगह अवेलेबल, पढ़ लूंगा ना। जब आपको पता लोग पढ़ लेंगे तो भैया आप वहां जो पढ़ना चाहते हो उसको दिखाओ वहां पे कंटेंट। क्योंकि उसको गधे को ये भी नहीं पता कि यार इसमें हो सकता है कम इन्फॉर्मेशन, अगला इसमें जब बात करूंगा तो मुझे ज्यादा पता चलेगा। अब लोग कहते हैं जब यही कम है तो पता चला आगे क्या होगा। तो लोग आज के डॉक्यूमेंट से, आपके इमेज से, आपके पोर्टफोलियो से ही आइडिया लगा लेते हैं कैसा होगा। अभी ये समय आ गया मार्केट में, जब से ये ऑनलाइन हो गया है तब तो और खराब हो गई सिचुएशन। अब तो सब जूम पे कर लेंगे। अरे भैया जूम पे बच्चा बच्चा आदमी कैसे बैठा है, किस तकलीफ में बैठा है, आदमी को थोड़ी पता चलता है। हाउ मच पेन ही और शी इज टेकिंग, किस सिचुएशन में आदमी बैठ के आपको कर रहा है। अब आप तकलीफ में हो, आप बैठ के जूम कॉल पे मुस्कुरा रहे हो, बट पता चला आपके हाथ पैर में दर्द है। राइट, सो पीपल आर नॉट एबल टू सी द रियल इमोशंस। जब आप सामने बैठते हो तो उसके आपके बात करते हो, आपका लैंग्वेज, आपका हाथ का उठना, आपके आंखों का ऊपर नीचे होना, आई एम एबल टू सी एवरीथिंग। Right? I can be more, I would be able to more concerned to you if you got any problem. लेकिन जब आप वर्चुअल हो गया सब चीजें, तो आई डोंट केयर जब तक आप मुझे बताओगे नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे आप लोग तो अभी आप लोग के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे ना, आप लोग बोलते एक्सप्रेस करते हो, द सेम यू हैव टू एक्सप्रेस योर एक्सपीरियंस एज वेल। आपको बॉयफ्रेंड बोलेगा तुमने मेरे को बोला नहीं आई लव यू, तो बोला बिना बोले नहीं समझ आता है, तो बोलता मेरे को क्या पता, बोलना चाहिए पहले ना। राइट, सो यू नीड एक्सप्रेशन एवरी टाइम। जब वहां पे एक्सप्रेस कर सकते हो तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना होगा, एंड यू नीड अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस। सो दिस इज अ बेटर प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस व्हाट एवर यू नो। क्योंकि पहले मेरे पास टाइम था, मुझे मालूम आप कुछ चीजें यहाँ नहीं लिखोगे, मेरे से मिलने आओगे, बात करोगे, तो मैं और भी चीजें आपके बारे में जानूंगा। अब मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। गेटिंग द पॉइंट, द लॉजिक, व्हाई यू हैव टू मेंशन इट? Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, ये सब हो गया। और हर जॉब में अगर आप कुछ, आपने कुछ अच्छा काम किया, आपने कुछ पीपीटीज बनाई है, कुछ अपने प्लान बनाया था, विच इज अगेन आई मीन कंपनी आपको ऑथराइज करती है उस डॉक्यूमेंट को यूज करने के लिए, यू कैन आल्सो गो एंड ऐड इनटू द रेस्पेक्टिव प्रोफाइल एज वेल। ठीक है, एंड देन कम्स योर एजुकेशन। अपने एजुकेशन को सर्टेनली डालिए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्कूल, कॉलेज, जो भी है, जितना भी आपने किया हुआ है, इट्स गुड टू मेंशन। फायदा क्या है इसका? फायदा यह है, लिंक्डइन पे आपको यू नो कैन कनेक्ट विद योर स्कूल मेट्स। आपका मान लो मेरा देवी यूनिवर्सिटी है, मेरा कोई एलुमनाई होगा बहुत पुराना, 25 साल 20 साल पुराना, मेरे Yeah, you'll get to know. so you will get a connection. और देयर इज ऑलवेज एन एफिनिटी। अगर हम सेम कॉलेज से, सेम स्कूल से, सेम सिटी से हैं, दिस ऑलवेज एक होता है, एक कनेक्शन होता है। भले कोई कहे ना कहे कि यार आप मेरे सिटी से बिलोंग करते, तो एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता है मेरे लिए। Right? So it helps you in bridging that, creating that connection for you for a better reach. So it is good to mention. Then comes the certification. अभी आप लोग जैसे TISS का certification कर रहे हो, और कहीं से आपने कुछ certification किया, so mention all the certifications whatever you have got. It adds on more value. Then comes the skills and endorsement. अभी LinkedIn ने recently चालू किया है, so you can there, जैसे आपने डाला अपना skill set SEO, so here you can go and take the assessment. 10-15 questions होते हैं, आप उसको आंसर करोगे, then your skill would be endorsed by LinkedIn that you are expert in certain ABCD skills. Along with that, you could see, so there are certain skills which have been, people have endorsed me for that skill set of mine. Endorsed by 6 JN's colleagues at Monthly Developers. ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए मेरे को 98 लोगों ने इंडोर्स किया हुआ है, लीड जनरेशन 99 लोगों ने, 99 प्लस लोगों ने इंडोर्स किया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग 97 लोगों ने इंडोर्स किया हुआ है। किसने इंडोर्स किया है? दीज आर द पीपल हु इंडोर्स मी दैट आई एम गुड एट ऑल दीज थिंग्स। अंडरस्टूड? एंड द लास्ट इज द रिकमेंडेशन। कोशिश कीजिए कि आप जहां भी काम किए हो, आपका रिश्ता लोगों से अच्छा रहे। अगर आपके कोई बॉस हैं,
आप उनको अगर वो भी लिंक्डइन पे है उनको रिक्वेस्ट सर काइंडली रेकमेंड मी। रेकमेंड मतलब होता है कि दे आर गोइंग टू राइट गुड अबाउट यू, आपने क्या अच्छा काम किया, आपके क्या अचीवमेंट्स है, दे आर गोइंग टू राइट इट इन अ बेटर वे, सो दैट जो रिक्रूटर इसको देखेगा उसको आपके बारे में पता चलेगा कि आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर्स आपके बारे में क्या कहते हैं, हाउ ग्रेट यू आर। ठीक है, आप लोग भी मेरे को रिकमेंड करना है ना यहाँ पे, देखो मेरे कुछ Yes, बच्चों sir. ने ठीक है, कीप डूइंग दैट जॉब। accomplishments, that's okay, you can add couple of more things, then ये interest है आपको किस किस टॉपिक में इंटरेस्ट है on LinkedIn, you can go and keep on adding here, बट ये उतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गया ये प्रोफाइल का पोर्शन। Yes, sir. तो मैं रिकमेंड करूँ आप लोग अपने प्रोफाइल को अच्छा बनाइए, मेक इट प्रेजेंटेबल, मेक इट रीडेबल, एंड देन स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल, राइट, जितना कनेक्ट कर सकते हो उतना अच्छा, और बट कनेक्ट विद द पीपल हु कैन बी ऑफ गुड हेल्प टू यू। अब आप अब आप इट्स लाइक समथिंग लाइक दैट ना, अब योर एग्जीक्यूटिव, आप भी एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट मत कीजिए, आप एग्जीक्यूटिव हो, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सीईओ, एमडी, डायरेक्टर, उनके साथ कनेक्ट कीजिए, राइट। वंस यू गेट ए कनेक्शन, एक कैजुअल कन्वर्सेशन चालू कर, हाय हेलो कीजिए, हेलो सर आई एम सो एंड सो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आस्क। याद रखिएगा, बिना मांगे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, यू हैव टू Yes, आस्क sir. फॉर इट। क्राइंग बेबी गेट्स द मिल्क, पता है कि नहीं पता है इस कहावत? हाँ, तो आप लोगों को भी क्राई करना है ऐसे ही, प्लेटफॉर्म पे जाइए, रिक्वेस्ट पीपल, सर आई एम लुकिंग फॉर, कैन यू हेल्प मी आउट, फॉलो अप कीजिए लोगों के साथ में, राइट। उससे दो चीज होती है, एक होता है आपकी जब रेगुलरली फॉलो अप करते हो विदाउट बॉदरिंग देम वेरी बैडली, यू आर एबल टू टेल देम हाउ सीरियस यू आर। देखो जो बंदा हेल्प करने वाला होगा ना, एक भी या दो बार फॉलो अप में आपको पक्का मदद करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो तो आपको ब्लॉक कर देगा या जो भी होगा, सो उसको बॉदर मत कीजिए। एंड फॉर गर्ल्स वन मोर थिंग, ओनली फॉर गर्ल्स, हो सकता है इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे चाहने वाले मिल जाएंगे आपको, दे विल स्टार्ट टॉकिंग यू नो अदर लैंग्वेज, though you should be knowing how to say stop without being rude. Getting my point? Yes. Hello, Yes, sir. right? So some people ना कुछ मनचले लोग आते हैं यहाँ पे, hi how are you, you're looking so this though that, can we meet? So आप उन सभी लोगों को, you guys know better than me कि how to say, how to stop them without offending, Yes, sir. Yes, right? sir. चलो ठीक है, so maintain it so that you are not being bothered here onto this platform, even though it is a social platform, but यहाँ पर भी लोग थोड़े से हैं, Sir, does this community actually has some discrimination about, मतलब ऐसे कुछ रहता है कि ये जो इंडीड की या व्हाटएवर लिंक्डइन की कम्युनिटी होती है, ये जो भी लोग ज्यादातर एक्टिव होते हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक इंस्टा पे जो जो कम्युनिटी होती है, तो इन लोग में कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है दैट दे डोंट लाइक सच पीपल्स और दे नो 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 डोंट नो, नथिंग नथिंग, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे पीपल ओनली, देखो इसमें एक और चीज है, इफ यू रियली वांट पीपल टू बी, वांट इफ यू वांट टू बी नोटिस बाय पीपल ऑन योर ग्रुप, आप चाहते हो कि आपके कनेक्शन में लोग आपको जाने पहचाने, तो आपको दो काम करना होगा। पहला है कि यू कैन कीप ऑन रेगुलरली, आप रेगुलर इंटरवल पर आप कुछ ना कुछ पोस्ट कीजिए related to your industry, related to the work you are doing, or something which is going to be useful for people. Secondly, now you see, I'm connected with people who are founders and many people, so you can also take part into the conversation. जैसे अब अंकुर वाइको ये फाउंडर नियर बाई का, if you see he has written something, so if you think you have got something to contribute which is really good, so आप कंट्रीब्यूट कीजिए कंटेंट विद अ कमेंट और समथिंग। उसका फायदा क्या होता है ना, अंकुर वाइको क्या है, सीईओ है, लेट्स सी हिज प्रोफाइल फर्स्ट। अब इस बंदे का प्रोफाइल जो भी जिन लोगों ने विजिट किया हुआ है, इस बंदे का प्रोफाइल जिन लोगों ने विजिट किया हुआ है, वो ये क्या हो गया रे, क्यों नहीं रहा है? This is so bad, Ankur. See more courses. No, I do not want. Let's check another guy. Wanted mutual connections.
Director recruitment Sharon Bay. This is bad. This is so bad. Why? This is so bad. Okay. चलो ठीक है. Let's see this अनिल कुमार guy. अब अनिल कुमार भाई साहब का प्रोफाइल जिन लोगों ने विजिट किया हुआ है, इफ यू सी अनिल कुमार के प्रोफाइल को देखने के बाद बाकी लोगों ने इन सारे प्रोफाइल्स को भी विजिट किया. पीपल ऑल्सो व्यूड श्रुतिक, पटनायक, अमरजीत. अब ये जो लोग हैं मोरलेस दे वुड बी कनेक्टेड टू दिस गाय. इसका मतलब ये जो लोग हैं इसके कनेक्शन से ही कनेक्टेड हैं. सो द एग्जाम्पल विच आई वाज गिविंग यू फॉर दैट सीईओ और एमडी, अब उसके प्रोफाइल को देखने वाले भी एमडी जैसे ही लोग होंगे या बड़े लोग होंगे. तो होता क्या है कि व्हेन यू स्टार्ट कमेंटिंग ऑन टू दोस बिग पीपल्स पोस्ट और समथिंग, यू आर एबल टू मेक योर विजिबिलिटी कि भैया कौन इसके इस पे पोस्ट पे किसने कमेंट किया है. सो पीपल, जितने बड़े लोग सब देखते हैं यार कौन है. एंड इफ रिटन समथिंग वेरी वेरी गुड पॉइंट, काफी अच्छा आपने कोई कमेंट डाला हुआ है व्हिच इज रियली गिविंग सम मोर इनसाइट, सो पीपल वुड लव टू विजिट योर प्रोफाइल. और धीरे धीरे देन यू बिकम मोर पॉपुलर इन द इंडस्ट्री. गॉट इट? इसी से आप अपने रेपुटेशन को बढ़ा सकते हो. So one is keep writing content here on LinkedIn and also be active in participating into the conversations. Yes, आपको sir. बहुत फायदा होगा, बिलीव मी. अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है और यू वांट टू बिकम द सेलिब्रेटेड एम्प्लॉय विद द कंपनीज, आपको जॉब खोजनी है, देन ये एक्टिविटी आपके लिए मस्ट है. फेसबुक पर 2 घंटा लगाते हो तो वहां कम करके आप यहाँ पे 1 घंटा बढ़ा दो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए. माय पर्सनल रिकमेंडेशन. क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्ट करोगे ना आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा. ऑलराइट? ठीक है. Yes. ठीक. Yes, तो sir. अपन लोग हम इसको कल क्या है, कल फ्राइडे क्या है, कल फ्राइडे का दिन है क्या भाई? कल फ्राइडे, कल अपन ऐड करेंगे भाई लिंक्डइन का. Yes, sir. ओके चलो ठीक है. आप लोग फिर आराम कीजिए, हम लोग कल मिलते हैं फिर. Okay, sir. Thank you. थैंक यू. बाय बाय. Bye bye. Thank you for wonderful session, sir. अरे आप भी देखिए. Yes, sir. Thank you very much, sir. Wonderful session, sir. Thank you ओके very much. ओके. Bye, sir. See you tomorrow. थैंक यू. बाय.